Yes, good afternoon. Yesterday we discussed chapter number 1, okay, that is Introduction to GST in India. In that chapter we discussed some basic things which were relating to GST. उसमें हमने क्या देखा, GST का नेचर कैसा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ GST, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, राइट, दैट वी डिस्कस. देन we discussed some important characteristics of GST system, okay, that is free flow of credit, that was one point. GST is a value added tax, that was second point, okay. Third point was there is a continuous chain of credits, and fourth one is your no cascading of taxes. These were the four important characteristics of GST which we discussed yesterday. Then we discussed about various deficiencies of old indirect tax regime, okay, and because of those deficiencies there was need to introduce a completely new system of indirect taxation in our country, and that was GST. So all the ill effects of old taxation regime or old pre-GST regime were what we can say, those deficiencies were removed by introduction of GST, okay. These are the points which we discussed yesterday. Now in today's lecture we will discuss on our chapter number 2 from GST, that is supply under GST, okay. There is a transaction. So basically the idea in this chapter is, for a transaction, suppose you are going to, whether GST is applicable on a particular transaction or not, if that is to be decided, that transaction must fit into the characteristics of supply. If the transaction can be treated as supply transaction, then only GST will be applicable on that transaction, okay. Otherwise, if the transaction is not the transaction of supply, then GST will not be applicable, okay. So whenever we discuss any tax regime or any taxation provisions, there is an important concept of taxable event, okay. What is that concept? Taxable event. So if we talk about excise duty in old regime, okay, so excise duty was applicable on manufacture of goods, right. So manufacturing was the taxable event for the purpose of excise duty. So excise duty कब applicable होता था? अगर कोई transaction और अगर कोई activity manufacturing का activity treat होता है, okay, then only excise duty will be applicable on that transaction, okay. Yes, Google Meet ला आवाज येतोय ना माझा? Okay, Google Meet पे am I audible? Yes. Okay, am I audible on Google Meet? Yes, sir. Okay, okay. So manufacture was the taxable event, or manufacturing was a taxable event under excise law. For VAT purpose or sales tax purpose, sale of goods was the event, okay. So VAT was applicable on sale of goods. So unless and until a transaction fits into the characteristics of sale, VAT was not applicable, okay. So on the same lines, under GST, supply of goods or service or supply is treated as what? Taxable event. So basically taxable event means what? Taxable event is an event, okay, कि once that event occurs, then only the liability or the levy of that tax is applicable on that particular transaction, okay. So अगर कोई transaction supply का transaction नहीं होता है तो उसके ऊपर GST applicable नहीं हो जाएगा, okay. अगर वो transaction supply के characteristic और supply के definition में fit होता है, then only that transaction will be treated as supply, and then only GST will be applicable on that transaction, right. So what we are going to discuss in this chapter, ki what this supply is, or what is the definition of supply, or what are the different things, or what are the different types of transactions which are included in this definition of supply, that we are going to discuss today, okay. So before we discuss, so from today onwards we will study, or we will what we can say is, we will discuss the actual legal provisions of GST law. In our first lecture, yesterday's lecture, there was no any legal provision which we discussed, okay. So but from this chapter onwards, from chapter 2 to chapter 11, whatever we will discuss, we will be discussing the actual provisions of GST law, okay. Now one thing you have to keep in mind, when we say GST law, okay,
yesterday we see ki there are 5 types of GST acts. Okay, there is a central GST act. Okay, there is a state GST act of respective states. There is an integrated GST act. There is a union territory GST act, and there is GST compensation cess act. So 5 types of laws are there. So for these basic provisions of GST, compensation cess act is not relevant for us. What is relevant? The remaining 4 laws. So whenever I use the word GST act or GST law, okay, in 99 out of 100 cases we will be always referring to central GST act. Okay, 4 laws है GST में. So जब हम GST law ऐसा वर्डिंग यूज करेंगे या GST act ऐसा वर्डिंग यूज करेंगे, so 99% केसेस में वी विल बी रेफरिंग टू सेंट्रल GST एक्ट. क्योंकि ऐसा है कि सेंट्रल GST एक्ट और स्टेट GST के जो एक्ट्स है रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, उसके प्रोविजन बिल्कुल सिमिलर है. ओके, और जो IGST एक्ट और UTGST एक्ट्स है उनमें ऐसा है कि जो बेसिक जो उसका ढांचा है या बेसिक जो प्रोविजंस है, फंडामेंटल प्रोविजंस, दिस प्रोविजंस आर गिवन इन CGST एक्ट ओनली, एंड रिमेनिंग एक्ट्स जो है वो CGST एक्ट से वो डेफिनेशंस या वो प्रोविजंस इंपोर्ट करते हैं. ओके, सो IGST एक्ट में क्या देखोगे आप, कुछ स्पेसिफिक IGST एक्ट के अंडर कवर होने वाले जो बातें हैं वो वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, और वो IGST एक्ट ऐसे बोलते हैं कि फॉर रिमेनिंग फॉर दिस थिंग्स यू रेफर टू दिस सेक्शन ऑफ CGST एक्ट. ओके, सो वेन एवर GST लॉ इट मीन्स CGST एक्ट. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट दिस सप्लाई इज. So the scope of supply and meaning of supply is defined in section 7 of CGST Act 2017. Okay, section 7 of CGST Act discusses what is the meaning of supply and what is included in the scope of supply. Okay, law के lectures आपके start हुए. Can anyone tell me normally the definition part under any law is in which section? It is normally in section 2. Okay, but in GST supply is not defined under section 2. सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन है GST लॉ में भी. ओके, लेकिन सप्लाई का जो स्कोप और मीनिंग है वो सेक्शन 2 में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है. इसके लिए सेक्शन 7 करके सेपरेट सेक्शन दिया हुआ है जिसमें ये मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई GST लॉ में बताया गया है. ठीक है, सो अब ये जो डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं तो हमको क्या करना है, वेन एवर अ ट्रांजैक्शन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू हैव टू सी कि ये जो डेफिनेशन में सप्लाई किस किस को बोलना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उस ट्रांजैक्शन को वेदर दीज आर अप्लाइंग टू दैट ट्रांजैक्शन और नॉट, ये जो सब टेस्ट है ट्रांजैक्शन को सप्लाई कब बोलना है, उसके जो कुछ टेस्ट सेक्शन 7 में दिए हुए हैं वो सब टेस्ट उस ट्रांजैक्शन के बारे में उसके आंसर्स अगर पॉजिटिव आ रहे हैं देन ओनली वी विल से कि दिस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई. Okay, if these characteristics are not applicable or not present in that particular transaction, then that transaction is not the transaction of supply. Okay, so this is the basic how we are going to interpret. So let's read the definition first and then we will discuss each point in detail. Section 7 meaning and scope of supply. Subsection 1 it says supply includes a all forms of supply of goods or service or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Clause AA, the activities or transactions by a person other than individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration. Explanation, for the purpose of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be the two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another. Clause B, importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business, and clause C, the activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. Then section 7 subsection 1 capital A, where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. Subsection 2, notwithstanding anything contained in subsection 1,
activities or transactions specified in Schedule 3 or such activities or transactions undertaken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged as a public authorities as may be notified by the government on the recommendations of the council shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services. Subsection 3, subject to subsection 1 capital A and 2, government may on the recommendations of the council specify by notification the transactions that are to be treated as a supply of goods and not as a supply of services, or a supply of service and not as a supply of goods. So, this is a small definition, right. There are 4 subsections और उसमें भी हर एक सबसेक्शन में क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी ऐसा करके सप्लाई किसको बोलना है, ओके इसका ये डेफिनेशन ही इतना बड़ा है। और अब हम हमारे सिलेबस के हिसाब से जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत छोटा पार्ट है, उसमें से सप्लाई किसको बोलना है और किसको बोलना नहीं है, इस पॉइंट पे अगर आप 7-8 घंटे भी डिस्कशन करोगे ना वो भी कम है। इतना सारा डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस इस डेफिनेशन के अंडर आ सकते हैं। या फिर लिटिगेशन के इश्यूज जो बहुत सारे हो रहे हैं जीएसटी में, तो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलना है कि नहीं बोलना है, इसी के ऊपर बहुत अभी भी लिटिगेशन चल रहा है। ओके, बट नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस सप्लाई इज डिफाइंड। ओके, सो लेट्स कम बैक। सबसेक्शन 1, सप्लाई इंक्लूड्स। सो डेफिनेशन 2 टाइप के होते हैं लॉ में, पता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है। ये कैसा है, इंक्लूड्स। दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड सप्लाई मीन्स, ओके, दे आर यूजिंग द वर्ड सप्लाई इंक्लूड्स। मीन्स वर्ड यूज किया होता है तो डेफिनेशन बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, ये ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। इंक्लूड्स बोले तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई में इंक्लूड होते हैं, ऐसा लॉ बोलता है, ठीक है। सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई? फर्स्ट क्लॉज ए, all forms of supply of goods or service or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal. Okay, so the law has given a illustrative list of transactions which are included in the scope of what? Supply. Okay, so these transactions are illustrative only. Whatever is mentioned in the definition, these are the illustrative transactions, so that you can get an idea ki what is included in the transaction of supply. Okay, so all forms of supply of goods or services. So 2 important यहाँ पे चीज़ें ऐसी आ जाती है कि goods और services. So first thing which we have to take into account, a particular transaction, if that transaction is to be treated as transaction of supply, that transaction must be of goods or services. Okay, जो goods और service का transaction होना चाहिए. If that transaction is something relating to a particular activity or particular thing which is not goods or services, that will not be included in the definition of supply. So वो transaction goods और या फिर सर्विस का होना चाहिए। तो फिर अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुड्स किसको बोलना है और सर्विस किसको बोलना है, राइट? दैट शुड बी डिफाइंड समवेयर, दैट इज डिफाइंड इन जीएसटी लॉ। बट बिफोर वी डिस्कस द डेफिनेशन, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी गुड्स किसको बोलना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? सेल ऑफ गुड्स एक्ट था ना फाउंडेशन में, ओके, उसमें डेफिनेशन था, याद है किसी को? सॉरी, लाउडर। ओके, okay, right, that same definition is there in GST law also. Okay, so basically what is goods? इस रिमोट को गुड्स बोल सकते हैं, माउस को बोल सकते हैं, पीसी को बोल सकते हैं, ओके, इस कीबोर्ड को भी बोल सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को बोल सकते हैं, बिल्डिंग को गुड्स बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। Why? इट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड को गुड्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिकॉज लैंड इज अगेन an immovable property. Okay, so what is goods that we are going to discuss? So subsection 52 of section 2, section 2 जो definition का section है GST law में, okay, उसमें जो subsection 52 है that defines what is goods. So goods means, अब देखो यहाँ पे specific definition आ गया, goods means, okay, so goods means every kind of movable property. So the basic characteristic of goods is it is a movable property, that should be, इट मीन्स मूवेबल। इसका मतलब क्या, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको इजीली मूव कर सकते हैं,
right? So therefore building is not a movable property, okay, land is not a movable property because what, because it is immovable, आप मूव नहीं कर सकते इस जगह। सो अगर कोई लैंड सेल का ट्रांजैक्शन होता है तो आप इसको बोलेंगे कि क्यों गुड्स का ट्रांजैक्शन है, नहीं है। बिल्डिंग सेल का ट्रांजैक्शन होता है वो गुड्स का ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं है। इसलिए अगर कोई लैंड सेल करता है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी होने की वजह से वो गुड्स नहीं है, राइट, अंडरस्टूड। सो मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि गुड्स होने के लिए वो प्रॉपर्टी मूवेबल होना जरूरी है। सो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, ओके, उसमें मनी इंक्लूड नहीं होता, जो करेंसी नोट्स करेंसी कॉइन्स है वो गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं, ओके। व्हाट इज मनी, कैन एनीवन टेल मी? ओके, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नहीं चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वगैरह वो ठीक है। मनी मतलब किसको मनी बोलना है? सी, मनी का मतलब ऐसा है कि मनी इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज लीगल टेंडर इन एनी कंट्री। सो हमारे कंट्री में 2000 का नोट लीगल टेंडर है क्या? नहीं है। 2000 का नोट लीगल टेंडर कैंसिल नहीं किया है उसका अभी भी, दैट इज स्टिल लीगल टेंडर, लेकिन वो सब जमा करने को बोला था, ओके। 500 का नोट इट इज़ अ लीगल टेंडर, ओके। 100 का नोट, 50 का नोट जो अभी हम लीगल टेंडर करके एक्सेप्ट हो रहा है वो वही, उसको ही मनी बोलना है। अगर किसी के पास डीमोनेटाइजेशन के पहले का नोट रहेगा 500,000 का, दैट इज नॉट मनी बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज लीगल टेंडर, राइट। सो जो लीगल टेंडर करके एक्सेप्ट होता है उसी को आप मनी बोलोगे, ओके। मतलब जो करेंसी, रनिंग करेंसी में जो चल रहा है उसको ही मनी बोलना है, ओके। सो दैट मनी, करेंसी नोट्स एंड करेंसी कॉइन्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। एंड सिक्योरिटीज भी इंक्लूड नहीं होता है। सिक्योरिटीज बोले तो सिक्योरिटी किसको बोलना है? बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। सो सिक्योरिटीज एंड मनी गुड्स में इंक्लूड नहीं होते, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम पता है? एक्शनेबल क्लेम इज समथिंग दैट इज अ क्लेम विच यू कैन एनफोर्स फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लॉटरी टिकट बाय करता हूँ और जो नंबर का टिकट मैंने बाय किया है वो अगर विनर करके सिलेक्ट होता है और कोई मुझे वो पैसा नहीं देता, तो मैं कोर्ट में उसके अगेंस्ट क्या कर सकता हूँ? पिटीशन फाइल करके वो पैसा मेरा एनफोर्स करके रिसीव कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम, ओके। सो एक्शनेबल क्लेम्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, ओके। जीएसटी लॉ में ऐसा है कि ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है हमारे कंट्री में, अभी आपको पता होगा। सो उसके ऊपर ना जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसका बहुत सारा डाउट था पहले। तो रिसेंटली एक साल 7-8 महीने पहले गवर्नमेंट ने वो ऑनलाइन गेमिंग को एक्शनेबल क्लेम के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया और उसके ऊपर जीएसटी लेवी कर दिया, ओके। सो एक्शनेबल क्लेम्स आर इंक्लूडेड। सो लेट्स नॉट गेट into the deeper discussion of what is actionable claim, but actionable claims are included in the definition of goods. exclude क्या किया है? सिर्फ मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूड किया है, ओके, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सक्लूड किया है। इंक्लूड्स में क्या है? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर बिफोर सप्लायर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। सो सेम सेल ऑफ गुड्स का जो डेफिनेशन है गुड्स का, ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन यहाँ पे भी उन्होंने यूज किया है। सो गुड्स का मतलब क्या समझ में आ गया सबको? ओके। नाउ द सेकंड थिंग हमने क्या बोला? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो गुड्स क्या है हमने देख लिया, सर्विसेज किसको बोलना है? सो उसका डेफिनेशन देखिए, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, वेरी वास्ट डेफिनेशन, ओके। जिसको हम गुड्स नहीं बोल सकते, सो जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, ऐसा डेफिनेशन लॉ में है, ओके। सो एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, अगेन मनी एंड सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, ओके। गुड्स से एक्सक्लूड किया ही है, सर्विस के डेफिनेशन से भी एक्सक्लूड किया है, ओके। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी or its conversion by cash or any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged। इसका मतलब क्या है मैं बोलता हूँ, देखिए मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स या सर्विसेज कुछ भी नहीं है, लेकिन यूज ऑफ मनी के रिलेटिंग जो ट्रांजैक्शंस है दैट आर ट्रीटेड एज सर्विसेज,
इसका मतलब देखो, अगर मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ और लोन लेता हूँ बैंक से, ओके, सो मान लो बैंक 10 लाख का लोन दे देती है मुझे, और बैंक उस पर क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। सो व्हाट इज इंटरेस्ट? बैंक ने जो पैसा यूज करने के लिए दिया है मुझे, उसका प्राइस है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में मैं बैंक को पे करता हूँ। ओके, सो इन फैक्ट मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स और नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज, बट मनी का यूज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है दैट इज ट्रीटेड एज सर्विस। ओके, सो 500,000 का बैंक ने जो 10 लाख रुपए मुझे दिया है वो क्या है, वो मनी है, दैट इज नॉट गुड्स और सर्विस। बट वो मनी का यूज मुझे अलाउ करने के लिए है, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है मुझसे, वो जो सर्विस है दैट पार्ट इज ट्रीटेड एज सर्विस। और या फिर सपोज आपको किसी फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इंडियन रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करके फॉरेन करेंसी लेना पड़ता है। यूएस में मान लो आप जाने वाले तो आपको डॉलर्स लेने पड़ेंगे। ओके, अब जब आप आपका रुपीज़ बैंक में देते हो और उसके बदले में बैंक आपको डॉलर्स देती है, तो बैंक कमीशन चार्ज करती है आपसे उसके लिए, फिर कुछ चार्जेस रिकवर करती है। ओके, सो दैट दे आर थिंग कि मनी कन्वर्जन के लिए जो चार्जेस मैं रिकवर कर रहा हूँ दैट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। ओके, सो मैंने लेट से 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया, उसके बदले में डॉलर बैंक से खरीद लिए, इसके लिए बैंक ने कमीशन चार्ज किया। सो दैट कन्वर्जन ऑफ मनी इज ट्रीटेड एज सर्विस। ओके, समझ रहा है? मतलब मनी और सिक्योरिटीज ये सर्विसेज है क्या? नहीं है, लेकिन मनी का यूज से रिलेटेड जो कुछ एक्टिविटीज़ है या फिर मनी के कन्वर्जन के रिलेटेड जो कुछ एक्टिविटीज़ है, दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। ओके, सो हमने क्या देखा, गुड्स का मतलब क्या है, सर्विस का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया सबको? ओके, और फिर से हम हमारे डेफिनेशन के यहाँ पे वापस जाते हैं। सो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन हमें एनालाइज करना है कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज सप्लाई और नॉट, पहला बात आपको क्या देखनी है कि वो गुड्स या सर्विस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं। ठीक है, सो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें गुड्स भी होता है और सर्विस का कॉम्बिनेशन होता है। कल देखा हमने, रेस्टोरेंट सर्विस रहेगा या फिर कंस्ट्रक्शन सर्विस रहेगा, जिसमें गुड्स सर्विस दोनों एक साथ सप्लाई किए जाते हैं। ओके, सो गुड्स और सर्विस और बोथ, सच एज, और क्या क्या मतलब इलिस्ट्रेटिव लिस्ट क्या है इन टर्म्स, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई विच आर एक्सपेक्टेड टू जीएसटी लॉ? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ये these are the forms of transactions, okay, which are included in the definition of or scope of supply. Okay, so इसका मतलब अब हमें वन बाय वन देखना है। सेल का मतलब क्या है? What is sale? ओके, ठीक है, सो बेसिकली सेल मतलब क्या है कि हम कोई गुड्स बेचते हैं किसी को, ओके, तो उसको सेल बोलते हैं। और ट्रांसफर क्या होता है? यस, व्हाट इज ट्रांसफर? ओके, गिविंग पोजेशन ऑफ समथिंग टू समवन, दैट इज ट्रांसफर। ओके, तो सेल और ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है? ओके, राइट, द डिफरेंस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब कोई भी गुड्स में सेल करता हूं तो उसका ओनरशिप जो है, उसका लीगल टाइटल जो है, वो मेरे कस्टमर को ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जब मैं ट्रांसफर बोलता हूं तो उसमें सिर्फ पोजेशन दूसरे आदमी के पास जाता है, उसका ओनरशिप मेरे पास ही रहता है। ओके, जैसे कि मान लो मेरी एक मोबाइल की शॉप है, कोई कस्टमर मेरे यहाँ पे आता है और वो मोबाइल परचेज करता है। लेट्स टेक एग्जांपल, ही परचेजेस द मोबाइल, ओके, उसने मुझे पैसे दे दिए, मैंने उसको मोबाइल डिलीवर कर दिया और वो मेरे शॉप से निकल गया और बाहर रास्ते पे जाते ही उसको मोबाइल गिर गया नीचे और वो मोबाइल डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। ओके, अब मुझे बताओ, वो जो मोबाइल डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो लॉस हुआ है, वो लॉस मेरा है कि मेरे कस्टमर का है? क्यों? क्योंकि मैंने उसका ओनरशिप उसको ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। सो सेल जब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब कि वो गुड्स का जो ओनरशिप है, ओनरशिप बोले तो उसके रिलेटिंग जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है, वो कस्टमर को पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाते हैं। सो नॉर्मल जो सेल का ट्रांजैक्शन सबको पता, मतलब हम डे टू डे ये ट्रांजैक्शन देखते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं। हम अगर शॉप में कुछ जाएंगे और कुछ चीज़ बाय करेंगे तो दैट इज ए ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। अंडरस्टूड?
सेल मतलब बेसिक क्या है, उसका ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफर होना जरूरी है। लेकिन जब मैं ट्रांसफर बोलता हूं, ओके, तो ट्रांसफर में ऐसा है किसी पोजीशन एक्स से वाई को जा रहा है, उसका ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता। ओके, उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि सपोज मेरा पुणे में हेड ऑफिस है, ओके, एंड देर इज अनदर ब्रांच ऑफिस विच इज लोकेटेड इनसे दिल्ली, ओके, और मैं पुणे के हेड ऑफिस से दिल्ली के ब्रांच को कुछ गुड्स भेज देता हूं, ओके, तो आप इसको सेल बोलोगे कि ट्रांसफर बोलोगे? ट्रांसफर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, मैं खुद मतलब मेरे ही ब्रांच को गुड्स भेज रहा हूं, तो सिर्फ पोजीशन पुणे हेड ऑफिस से दिल्ली ब्रांच को ट्रांसफर हो गया, उसका ओनरशिप ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ, राइट? या फिर अनदर एग्जांपल कि सपोज व्हाट वी कैन से, ओके, मेरे घर में कुछ फंक्शन करना है मुझे, ओके, और कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, उस फंक्शन के लिए एक किसी इससे जाके मैंने प्लास्टिक चेयर्स रेंट पे मैं लेके आया, ओके, मेरे पास इतने चेयर्स नहीं है, तो मैं गया और 2 दिन के लिए वो प्लास्टिक चेयर्स में लेके आया इवेंट के लिए। तो उसमें क्या हो गया, प्लास्टिक चेयर का ओनरशिप आ गया क्या? मेरे पास नहीं आया, सिर्फ पोजीशन आ गए, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफर। ओके, सो सेल और ट्रांसफर दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर में सिर्फ पोजीशन जाता है, ओनरशिप नहीं जाता है। ठीक है, सो सेल एंड ट्रांसफर, यू अंडरस्टूड? ओके, देन बार्टर एंड एक्सचेंज। सो व्हाट इज बार्टर? ओके, गुड्स अगेंस्ट गुड्स, मतलब कोई पैसों की लेन देन नहीं होती उसमें। ओके, मैं कोई गुड्स दूसरे से लेता हूँ, मेरे कुछ गुड्स उसको दे देता हूँ, उसको बोलते हैं बार्टर। और एक्सचेंज क्या होता है फिर? ओके, that is the denomination is changing, but that is not expected here. What is exchange? बार्टर और एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? बार्टर तो पता चल गया सबको, गुड्स देता हूँ और गुड्स लेता हूँ, दैट इज बार्टर। देन एक्सचेंज में क्या होता है? सॉरी, हाँ, गुड्स से रिलेटेड होता है, पता है, लेकिन क्या होता है? एनी आइडिया? ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मेरे पास एक कार है, वो कार मैं 10 साल यूज़ करता हूँ, अब वो पुरानी हो गई और मुझे नई कार लेनी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पुरानी कार लेके शोरूम में जाता हूँ, शोरूम वाला उसका वैल्यूएशन कर देता है, मान लो 2 लाख रुपए वैल्यूएशन कर दिया। मैं नई गाड़ी खरीद करने वाला हूँ, उसका कीमत 10 लाख रुपया है। ओके, सो व्हाट ही विल डू? ओके, 10 लाख का कार वो मुझे दे देगा, उसके अगेंस्ट मेरे ओल्ड कार के 2 लाख कम कर देगा, और जो डिफरेंस के 8 लाख रुपीज़ है वो मैं उसको पे कर दूंगा। इसको एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज में गुड्स के अगेंस्ट गुड्स प्लस मनी, ऐसा दोनों इन्वॉल्व होता है। और जब हम बार्टर बोलते हैं तो उसमें सिर्फ गुड्स के अगेंस्ट गुड्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? सो बार्टर एज वेल एज एक्सचेंज, दीज 2 ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड? बार्टर क्या है, एक्सचेंज क्या है? मतलब हमने 4 टाइप के ट्रांजेक्शन डिस्कस किए। क्या? सेल किसको बोलना है, ट्रांसफर किसको बोलना है, बार्टर और एक्सचेंज। नेक्स्ट इज लाइसेंस। व्हाट इज लाइसेंस? permit to run a business. License means giving permission to use something basically, or giving permission to do something. ओके, हम ड्राइविंग लाइसेंस निकालते हैं, इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट में परमिशन देता है गाड़ी चलाने के लिए। ओके, यहाँ पे जो लाइसेंस एक्सपेक्टेड है वो क्या है मैं बोलता हूँ। सपोज आई एम एन ऑथर, मैंने कुछ बुक राइट, मतलब बुक का कुछ मटेरियल मैंने प्रिपेयर किया। ओके, और उसमें कैसे होता है कि वो बुक का मैं क्या करता हूँ, कॉपीराइट मेरे नाम पे रजिस्टर करता हूँ, बिकॉज दैट इज ओरिजिनल वर्क्स विच इज़ कैरियड आउट बाय मी, सो उसका ओनरशिप मेरे पास रहना चाहिए, सो उसका कॉपीराइट में रजिस्टर करता हूँ। कल अगर कोई पब्लिशर मेरे यहाँ पे आता है और मुझे बोलता है कि मुझे आपका बुक पब्लिश करना है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि उसका कॉपीराइट मेरे पास है, तो जब तक मैं उसको परमिशन नहीं देता वो पब्लिश कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। सो आई लाइसेंस हिम और आई परमिट हिम द बुक विच इज़ कॉपीराइटेड टू मी, सो वो उसको पब्लिश करेगा, बेच देगा गुड्स, वो बुक्स, और उसके ऊपर जो कुछ रॉयल्टी है वो मुझे पर बुक समथिंग रॉयल्टी मुझे वो पे करेगा। राइट, सिमिलरली ऐसा ही होता है कि अगर मान लो आई एम ए साइंटिस्ट, मैं कुछ
मेडिसिन का फॉर्मूला डिज़ाइन करता हूँ, उसका पेटेंट ले लेता हूँ मेरे नाम पे। अगर किसी फार्मा कंपनी को मेरा फार्मूला यूज़ करके कोई मेडिसिन बनाना है तो उसको क्या करना पड़ता है, मेरा पेटेंट यूज़ करने के लिए मुझे चार्जेस देने पड़ते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अलाउिंग माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड बाय समवन, दिस इज कॉल्ड लाइसेंस नॉर्मली। ठीक है, सो ऐसे जो कुछ ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शन भी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज रेंटल एंड लीज। क्या फर्क है रेंटल और लीज में? पता है? व्हाट लीज इज फॉर पर्टिकुलर पीरियड और रेंटल, ओके, एंड लीज, लीज इज ऑल्सो फॉर पर्टिकुलर पीरियड। सॉरी, थोड़ा जोर से सुना है। ओके, सी रेंटल और लीज में ऐसा फर्क बोल सकते हैं कि रेंटल जो है ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। ओके, जैसे मैंने बोला मैं चेयर्स किसी को रेंट पे देता हूँ, राइट, मैं ये हॉल है ये किसी को रेंट पे दे सकता हूँ, ओके, उसको रेंटल। और लीज नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में आता है, और रेंटल जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लीज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ओके, सपोज मुझे MIDC में कोई एक मेरा प्लांट डालना है कुछ मैन्युफैक्चरिंग का, सो मैं MIDC का लैंड में 50 साल के लीज पे ले लेता हूँ या 99 ईयर्स के लीज पे ले लेता हूँ, तो उसको लीज मतलब नॉर्मली वो लॉन्गर पीरियड का होता है और रेंटल मतलब शॉर्ट पीरियड का होता है। ओके, ट्रांजैक्शन एक ही टाइप का है, आई एम अलाउिंग यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू समवन। ओके, सो रेंटल एंड लीज समझ गया सबको? सो ये सब चीज़ें जो है ना वो सप्लाई में इंक्लूड होती है। ओके, कौन कौन सी? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ये डिस्पोजल क्या है पता है किसी को? डिस्पोजल का मीनिंग है टू गिव अवे समथिंग। ये जो सब हम चीज़ें कर रहे हैं ना, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, इन सभी ट्रांजेक्शन में वी आर गिविंग अवे समथिंग टू समवन। ओके, सो डिस्पोजल का मीनिंग ऐसा है कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये जो फॉर्म्स है ये फॉर्म छोड़ के किसी और टाइप से भी आप अगर आपके कोई ट्रांजैक्शन या गुड्स और सर्विस डिस्पोज ऑफ करते हो किसी के लिए, तो वो भी सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब सप्लाई का स्कोप सिर्फ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल तक लिमिटेड नहीं है। ओके, ये फॉर्म्स छोड़ के अगर किसी और टाइप से आप आपके गुड्स डिस्पोज ऑफ करते हो या फिर गिव अवे करते हो किसी के लिए, तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसका मतलब सप्लाई का स्कोप बहुत बड़ा है जीएसटी में। हैविंग डिस्कस दिस, एक चीज आपको सबको ध्यान में ऐसी रखनी है कि जीएसटी में सिर्फ सेल पे जीएसटी नहीं है। सेल इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, बट इन एडिशन टू सेल्स ये जो बाकी के सब ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस सप्लाई के स्कोप में या सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं। इसका मतलब अगर मैं कुछ बेचता हूँ तो ही जीएसटी है ऐसा इसमें नहीं है। मैं कुछ रेंट पे देता हूँ उसके ऊपर भी जीएसटी है, मैं कुछ ट्रांसफर करता हूँ उसके ऊपर भी जीएसटी है। ठीक है, सो स्कोप ऑफ सप्लाई इज वेरी मच बिगर देन सेल। ये नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेल ओनली, बट ऑल दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो देयर इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि सप्लाई का स्कोप सिर्फ सेल तक सीमित नहीं है, उसके एडिशन में भी और बहुत कुछ ऐसे थिंग्स है वो कि जो वो जीएसटी के सप्लाई के डेफिनेशन में क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। ओके, सो इतने तक आप समझ गया सबको? अगर किसी इसमें डाउट है? सी वाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन डिटेल, बिकॉज ये बहुत बेसिक है। अगर ये आप नहीं समझोगे तो जीएसटी नहीं समझ पाओगे। ओके, और कोई भी लॉ आप जब रीड करते हो तो लॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके हमारे यहाँ पे एक रूल्स है कुछ, मतलब कोई अगर लॉ आपको इंटरप्रिट करना है तो कैसे करना है। ओके, उसमें ऐसा है कि कोई लॉ का जो सेक्शन है उसमें अगर कॉमा भी होता है तो उसको भी कुछ मीनिंग है, लिटरल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं उसको। जैसे लॉ में लिखा है उस हिसाब से आपको इंटरप्रिट करना है। सो ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग डिटेल। ओके, सो दिस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई आर इंक्लूडेड, अंडरस्टूड? मेड और अग्रीड टू बी मेड। So what is difference made or agreed to be made में?
Made means you have already done these transactions, or agreed to be made means you are agreeing to do that transaction in the future. So all both these scenarios are included. So मान लो अगर ऐसा है कि मैं लेट्स से मुझे किसी क्लाइंट का ऑडिट करना है और ऑडिट का फी मैं एडवांस में ले लेता हूँ. सो आई एम एग्रीइंग टू प्रोवाइड हिम सर्विस इन फ्यूचर. सो मैंने ऑलरेडी कुछ काम किया हुआ है वो भी आ जाएगा, या फिर फ्यूचर में कुछ अगर मैं करने वाला हूँ इस फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन में तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. ओके, सो मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न. सो ये जो ट्रांजैक्शन सब करने वाले हो, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब ट्रांजैक्शन ये फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है. अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए कुछ करोगे ये ट्रांजैक्शन तो वो सप्लाई नहीं हो जाएंगे, सप्लाई नहीं होगा. राइट. सो मान लो मैंने किसी लेट से देयर इज अ स्कूल और मैंने मेरा एक स्टेशनरी का शॉप है तो मैं स्टेशनरी शॉप के कुछ नोटबुक में फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दे दिए उस स्कूल को, तो वो सप्लाई हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मैं कंसिडरेशन कुछ भी नहीं ले रहा हूँ. सो इफ यू आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर समथिंग दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई. सो दैट मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन. कुछ तो कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट होना चाहिए. वो सफिशिएंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई का ट्रांजैक्शन नहीं है. अंडरस्टूड. फॉर टाइमिंग ये याद रखो, इसको 4 एक्सेप्शंस है वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि जिन ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन ना भी हो तो उसको सप्लाई बोलना है हमको. ओके, दैट वी विल डिस्कस. सो कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है. बाय अ पर्सन, पर्सन मीन्स सब, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो जो कुछ अलग अलग फॉर्म्स जो है बिजनेस के, नेचुरल पर्सन्स एज वेल एज अदर देन नेचुरल पर्सन, वो सब ये पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहे हैं. एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो ये जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, वो आप इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपने करना जरूरी है. अगर ये आप बिजनेस करने के लिए नहीं कर रहे हो तो ये सप्लाई नहीं है. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. हमारा जो एग्जांपल था, मैंने पुरानी कार एक्सचेंज कर दी और नई कार परचेस किया. उसमें क्या हुआ है, शोरूम वाले ने मुझे नई गाड़ी बेची है और मैंने क्या किया, मेरी पुरानी गाड़ी बेच दी है ना उसको. सो वी आर बोथ आर डूइंग द सेम ट्रांजैक्शन. मैंने मेरी ओल्ड कार उसको बेच दी और उसने नया कार मुझे बेच दिया. इसमें ऐसा है कि जो शोरूम वाला मुझे कार बेच रहा है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन मैं जो कार उसको एक्सचेंज कर रहा हूँ दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. राइट, अंडरस्टूड. या फिर लेट्स टेक एग्जांपल कि मैंने क्या किया, सपोज मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत है और मेरे घर में कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है. मैं एक ज्वेलर के पास जाता हूँ, उसको वो गोल्ड दे देता हूँ और पैसे ले लेता हूँ. सो आई एम सेलिंग गोल्ड टू दैट ज्वेलर. मैं गोल्ड सेल कर रहा हूँ लेकिन ज्वेलर भी उसके कस्टमर्स को गोल्ड सेल कर रहा है. तो मैं जो गोल्ड सेल कर रहा हूँ वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं है. राइट, लेकिन जो ज्वेलर कस्टमर्स को गोल्ड सेल कर रहा है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है. सो ये जो एक्टिविटीज़ है ये एज अ बिजनेस एक्टिविटी आपका होना जरूरी है. सो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. फर्दरेंस मीन्स बिजनेस, मतलब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में इट शुड बी योर बिजनेस एक्टिविटी और दैट शुड बी समथिंग विच इज एंसिलरी टू योर बिजनेस एक्टिविटी. फर्दरेंस का मतलब वो बिजनेस बढ़ाने के लिए या बिजनेस और आगे ले जाने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो, दैट इज मीन्स इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरा एक प्लांट है, ओके, और वो प्लांट में मैं कुछ मशीनरी यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और एक मशीनरी जो है वो मेरी ओल्ड हो गई और मैंने वो मशीनरी बेच दिया. ओके, तो आप उसको सप्लाई, मतलब ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है? ट्रांजैक्शन समझ गया? क्या हुआ, मुझे नया मशीन लेना है इसलिए मैंने मेरा जो पुराना मशीन था वो किसी को बेच दिया. आई एम अ बिजनेसमैन, राइट, एंड आई एम सेलिंग दैट मशीन, ओल्ड मशीन, एंड आई एम बाइंग द न्यू मशीन. सो मैं ओल्ड मशीन जो सेल कर रहा हूँ वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? नहीं है. क्यों? दैट इज यू आर सेइंग कि मशीन सेल करना मेरा बिजनेस नहीं है. ओके,
नहीं भले नहीं वो एक्सचेंज हो रहा है वो पता है, लेकिन कैसे कि हम वही बात करें कि सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा हो तो ही सप्लाई बोलना है उसको, करेक्ट। सी इसमें क्या होगा, मशीनरी, भले मेरा मशीनरी सेल करने का बिजनेस नहीं है, सो दैट इज नॉट, दैट मे नॉट बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और दैट मे कैन बी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस आगे ले जाने के लिए मैं कर रहा हूँ ना, ओल्ड मशीन बेच रहा हूँ और न्यू मशीन बाय कर रहा हूँ, ओके। ये बहुत ग्रे एरिया है, इसको इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोलना है कि नहीं बोलना है, ओके। लेकिन मतलब आपको फैक्ट्स देखने पड़ेंगे हर एक ट्रांजैक्शन के, हर एक ट्रांजैक्शन के फैक्ट्स देखने होंगे, उसको ये सब टेस्ट अप्लाई करने होंगे, एंड देन आपको डिसाइड करना होगा कि इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई का ट्रांजैक्शन हमको बोलना है या नहीं बोलना है, ओके। सो सब क्लॉज ए डिस्कस किया हमने, वे समझ गए आपको, ओके। क्या बोला हमने, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो हमको क्या ध्यान में रखना है, ट्रांजैक्शन सप्लाई का होने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले वो गुड्स या सर्विस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, राइट। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि वो फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड तीसरी बात वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ओके। दिस थ्री आर द बेसिक टेस्ट। ये टेस्ट अगर किसी ट्रांजैक्शन को पॉजिटिवली अप्लाई होते हैं तो हम वो ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, सप्लाई का ट्रांजैक्शन है ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड, ये इतना समझ में आ गया सबको। देखिए कोई पॉइंट और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो बताइए, ठीक है, ओके। सो ये हुआ क्लॉज ए। अब हम आगे जाते हैं, क्लॉज डबल ए में क्या बोला है, ओके। देखिए वी हैव ऑलमोस्ट यूज्ड 45 मिनट्स फॉर डिस्कसिंग दिस स्मॉल 2-3 लाइन्स, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये दिस इज अ क्या बोलते हैं फंडामेंटल, जो कुछ हर एक लॉ के प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें सप्लाई का प्रिंसिपल है। सप्लाई है कि नहीं इसी पे डिपेंड रहेगा कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। वो क्लॉज डबल है जो है वो थोड़ा उसका हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, पहले हम रीड करते। द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। क्लब्स होते हैं, पता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स, उसका एक्टिविटी कैसे चलता है, एनी आइडिया? क्लब्स के कुछ मेंबर्स होते हैं, ओके। क्लब के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। क्लब में मान लो मुझे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, मुझे रेस्टोरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ओके, या फिर ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ मुझे क्लब में अवेलेबल होते हैं और वो एक्सक्लूसिवली मेंबर्स को अवेलेबल होते हैं, दैट यू मे नो, ओके। सो वो क्या करते हैं कि मेंबर्स से कुछ कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं और उसके बदले में मेंबर्स को क्या कुछ सर्विसेज या गुड्स सप्लाई करते हैं, वो ये क्लब का एक्टिविटी होता है। तो हमारे टैक्सेशन लॉज में ना एक देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, ओके। म्यूचुअलिटी मतलब क्या, एक बात आप समझ लो कि कैसा है कि अगर मैं किसी को कुछ सेल करने वाला हूँ या ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, मतलब सप्लाई करने वाला हूँ, तो इसके लिए 2 पर्सन्स का होना जरूरी है। मैं खुद को सप्लाई नहीं कर सकता, राइट। पर्सन ए एंड पर्सन बी शुड बी डिफरेंट फॉर कैरिंग आउट सप्लाई ट्रांजैक्शन। तो उसमें ऐसा होता था कि जो क्लब्स है और मेंबर्स, तो ऐसे कि क्लब्स और मेंबर्स वर ट्रीटेड एज सेम पर्सन्स, दे आर नॉट डिफरेंट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे मेंबर्स से ही पैसे ले रहा हूँ और मेरे मेंबर्स को ही कुछ तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट सप्लाइंग एनीथिंग टू देम, ओके। आई एम नॉट, बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज द सेम पर्सन। क्लब और उसके मेंबर्स अलग अलग नहीं है, उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। या फिर हम हमारे सोसाइटी में जब हमारा फ्लैट या घर होता है तो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं। उसमें कैसे होता है, देखो हम हर एक मेंबर मेंटेनेंस चार्जेस पे करता है और वो पे करने के बाद कॉमन फैसिलिटीज जो रहती है, मतलब साफ सफाई करना रहेगा, कुछ कॉमन लाइट्स रहते हैं उसका ये करना पड़ेगा, या फिर बिल्डिंग का कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करना है वो करना रहेगा, ओके। वो सब एक्टिविटीज़ उस पैसे से किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेंबर्स ही उनकी खुद के एक्टिविटी के लिए फंडिंग कर रहे हैं और वो एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं। सो इन सब सिचुएशंस में कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी अप्लाई होता है जीएसटी में। जीएसटी मतलब टैक्स लॉ में म्यूचुअलिटी मतलब मेंबर्स एंड क्लब आर नॉट 2 डिफरेंट थिंग्स और मेंबर एंड सोसाइटी आर नॉट 2 डिफरेंट थिंग्स। और इसमें एक कलकत्ता क्लब करके एक क्लब था जिसमें ऐसा हुआ कि
वो कलकत्ता क्लब ने उनके मेंबर्स को कुछ गुड सर्विस सप्लाई किए थे और जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऐसा स्टैंड ले लिया उसमें कि क्लब एंड मेंबर आर टू डिफरेंट पर्सन्स, देयरफॉर क्लब ने मेंबर्स को जो कुछ सप्लाई किया है उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और उसने डिमांड रेज किया। ओके, डिमांड रेज करने के बाद वो डिस्प्यूट हो गया डिमांड। कलकत्ता क्लब वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दैट डिपार्टमेंट्स एक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट ने इन फेवर ऑफ कलकत्ता क्लब डिसीजन दे दिया क्या कि मेंबर्स एंड क्लब आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर द सेम पर्सन, देयरफॉर क्लब ने मेंबर्स को जो कुछ गुड्स सर्विस अप्लाई किए है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, सो ऐसा होने की वजह से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वो डिमांड क्वैश कर दिया गवर्नमेंट का। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लाया है जीएसटी लॉ में टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ कलकत्ता क्लब जजमेंट। ओके, टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए था उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, इसलिए उन्होंने लॉ ही अमेंड कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब ये अमेंडमेंट समथिंग 2020 के अराउंड आया रहेगा, बट इट हैज़ बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव कर दिया। इसलिए वो क्या बोल रहे थे, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट। सो जो क्लब है या फिर जो कुछ सोसाइटी है वो अगर उनके खुद के मेंबर के लिए कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी हमको सप्लाई बोलना है, ऐसा ये ट्रांजैक्शन बोलता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स एनी जजमेंट और डिक्री ऑफ एनी कोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसको ओवर राइडिंग इफेक्ट देने के लिए ये अमेंडमेंट बाद में जीएसटी लॉ में आया है। सो बेसिकली ये बहुत मतलब अगर इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, मैंने सिर्फ आपको जिस्ट बताया है उसका। ओके, आपको ये याद में रखना है कि क्लब और मेंबर्स इनके बीच में जो कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन भी आपको सप्लाई के ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करना है और रादर उस ट्रांजैक्शन को भी हमें क्या बोलना है, सप्लाई बोलना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ क्लॉज बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये एक थोड़ा अलग टाइप का प्रोविजन जीएसटी में है। ओके, आपको कुछ डिफरेंस ध्यान में आ रहा है? क्या है? क्लॉज ए में जो हमने बोला था सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज, और क्लॉज बी में जो हम बोल रहे हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। आर यू किसको समझ में या फिर गेस कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें? ओके, देखो इंपोर्टेशन, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? दूसरे कंट्री से कुछ गुड्स इंडिया में लाना या कुछ सर्विसेज इंडिया में लाना, इसको बोलते हैं इंपोर्ट। सो इंपोर्ट जो है, तो इंपोर्ट मेरा सेल का ट्रांजैक्शन है कि परचेज का ट्रांजैक्शन है? परचेज का ट्रांजैक्शन है। बाकी के सब P&L के क्रेडिट साइड वाले ट्रांजैक्शन थे ना मेरे, सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज, इससे मुझे कुछ तो इनकम जनरेट हो रहा है। लेकिन ये बी वाला क्लॉज ऐसा है कि मेरा परचेज साइड का ट्रांजैक्शन है, फिर भी वो सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। So importation of service means you are importing some service from, it means service provider is outside India, service recipient is in India and he is importing some service from the person outside India, उसको बोलते हैं import of service। जैसे import of goods होता है, ओके, import of goods मतलब इंडिया के बाहर के किसी कंट्री से मैं इंडिया में गुड्स लाता हूँ। ऑन द सेम लाइन्स इंडिया के बाहर बैठने वाले किसी पर्सन से अगर मैं कुछ सर्विस इंपोर्ट करता हूँ तो वो सर्विस जो है उसको हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं और वो सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। ओके, सो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, यहाँ पे भी कंसिडरेशन होना जरूरी है, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट इज इंपॉर्टेंट। ऊपर हम क्या बोल रहे थे कि ट्रांजैक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए उसको सप्लाई बोलने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्टेशन के केस में वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं मैटर ही नहीं करता। Once you are importing the service for a consideration, it is treated as transaction of supply. Okay, understood? मतलब जो सर्विस में इंपोर्ट करता हूँ, परचेस करता हूँ, उसके ऊपर भी मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। दैट इज द बेसिक थिंग। ओके, सो बी क्लॉज समझ में आ गया। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगेन फॉर अ कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट एंड वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, कैन एनीवन टेल मी, यहाँ पे सिर्फ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस ही क्यों बोला है? व्हाई दे आर नॉट सेइंग इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ?
और इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स यहाँ पे क्यों नहीं इंपोर्ट किया, इंक्लूड किया है, सिर्फ सर्विस ही क्यों किया? राइट, कुछ तो रीजन रहेगा ना उसमें. व्हाई इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज नॉट हियर? करेक्ट. ओके, बिकॉज इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो ट्रांजैक्शन है दैट इज ऑलरेडी टेकन केयर बाय कस्टम्स लॉ. ओके, गुड्स जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो उसके ऊपर मैं कस्टम ड्यूटी पे करता हूँ अंडर कस्टम्स लॉ, लेकिन सर्विस के लिए कस्टम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. सो इसलिए सिर्फ सर्विस उन्होंने जीएसटी में इंक्लूड किया. समझ में आ गया? ओके, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी हमने देख लिया. ओके, वो क्लॉज ए में हमने एक बोला था कि एक ट्रांजैक्शन को अगर मुझे सप्लाई का ट्रांजैक्शन बोलना है तो इसके लिए उस ट्रांजैक्शन, वो जो ट्रांजैक्शन है वो फॉर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है. ओके, अब क्लॉज सी क्या बोलता है, देखो कि द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन. मतलब ये जीएसटी का जो डेफिनेशन है सप्लाई का, उसके बाद एक शेड्यूल 1 करके शेड्यूल लॉ में है, और वो ऐसा बोल रहे हैं कि शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज स्पेसिफाई किए हुए हैं वो एक्टिविटीज अगर विदाउट कंसिडरेशन भी हो तो उसको सप्लाई बोलना है. तो जनरल रूल क्या है? नो कंसिडरेशन देन नो सप्लाई. इस रूल को एक्सेप्शन है शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन. राइट, अगर एक कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में लिस्ट किए हुए एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है तो वो एक्टिविटीज भले विदाउट कंसिडरेशन भी हो वो सप्लाई के स्कोप में इंक्लूड हमें करना है. तो मतलब कैसे, अगर ट्रांजैक्शन आपके सामने आ गया, आपने देखा कि गुड्स और सर्विस का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ओके, सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज में बैठता है क्या, तो ठीक है, आ रहा है उसमें. फॉर कंसिडरेशन है क्या, तो फॉर कंसिडरेशन नहीं है. सो ये जो टेस्ट है फॉर कंसिडरेशन, तो हमें प्राइमा पीसी हमारे माइंड में क्या आता है कि कंसिडरेशन नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं बोलना है, लेकिन इमीडिएटली कंक्लूजन पे हमको नहीं आना है. अगर कंसिडरेशन नहीं है उसमें तो आपको बाद में जाके देखना है कि वो शेड्यूल 1 में आ रहा है क्या. ठीक है, अगर वो शेड्यूल 1 में आ रहा है तो उस ट्रांजैक्शन के लिए कंसिडरेशन ना भी हो तो भी मैटर नहीं करता. मतलब शेड्यूल 1 एक्टिविटीज जो है उसके लिए इवन इफ दो एक्टिविटीज आर विदाउट कंसिडरेशन वी हैव टू ट्रीट दिस ट्रांजैक्शंस एज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई. अंडरस्टूड? सो हमें अब देखना पड़ेगा कि ये शेड्यूल 1 में कौन से एक्टिविटीज लिस्ट डाउन किए हुए हैं. ठीक है, यस, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. ओके, कौन कौन सी 4 टाइप के एक्टिविटीज है जो शेड्यूल 1 में इंक्लूड किए हुए हैं. फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स. ओके, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स. इसका मतलब किसी बिजनेस एसेट का आप परमानेंट ट्रांसफर या परमानेंट डिस्पोजल करते हो और उस एसेट पे अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर दिया है ऑलरेडी, तो उस ट्रांजैक्शन को आपको सप्लाई का ट्रांजैक्शन बोलना है इवन इफ दैट इज विदाउट कंसिडरेशन. इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, कल बोला था, हमने डिस्कस किया था. व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? जब हम कुछ भी कोई थिंग परचेज करते हैं तो उसको ऊपर जो जीएसटी पे करते हैं उसका हमें क्रेडिट मिलता है अगेंस्ट माई सेल्स लायबिलिटी. ओके, उसको हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला था. ओके, सो अगर कोई बिजनेस एसेट में परचेस करता हूँ और उसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता हूँ, ओके, जब मैं कोई भी परचेस करता हूँ उस टाइम पे मैं उसका आईटीसी अवेल करूँगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी उसको बोलना है. उसका ऊपर मैंने आईटीसी क्या किया है, अवेल किया है, और बाद में मैं ये जो मेरे एसेट्स है उसका परमानेंट ट्रांसफर करता हूँ या फिर परमानेंट डिस्पोजल करता हूँ. ओके, तो वो ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी उसको सप्लाई बोलना है. लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने क्या किया, आज एक मशीनरी बाय किया. ओके, मशीनरी बाय करते टाइम मैंने उसके ऊपर कुछ तो जीएसटी पे किया है. ठीक है, मतलब इसका आईटीसी मैंने आज ले लिया, अवेल कर दिया. 5 साल मैंने वो मशीन यूज़ किया और 5 साल के बाद वो मशीन ख़राब हो गया, इसलिए मैंने वो स्क्रैप में दे दिया. उसके मुझे पैसे कुछ भी नहीं मिले क्योंकि वो इतना ख़राब हुआ था कि उसका कुछ रियलाइजेबल वैल्यू था ही नहीं. सो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही वो स्क्रैप कर दिया. राइट, तो मतलब उसमें क्या हो गया कि मुझे कुछ कंसिडरेशन मिला क्या, नहीं मिला, और मैंने वो स्क्रैप कर दिया, मतलब मैंने ये परमानेंट डिस्पोजल कर दिया उस एसेट्स का.
लेकिन जब एसेट मैंने परचेस किए थे 5 साल पहले तो मैंने उसका आईटीसी अवेल किया था, राइट। इसका मतलब क्या कि ये ट्रांजैक्शन, ये शेड्यूल 1 का जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें आ रहा है। मैंने एसेट कोई भी परचेस किया हो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, और बाद में अगर उस एसेट का मैं परमानेंट ट्रांसफर करता हूं और परमानेंट डिस्पोजल करता हूं विदाउट कंसिडरेशन, देन दिस ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई। उसमें कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हमको उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलना है, सप्लाई बोलना है। ये समझ गए आपको पहला? ओके, आईटीसी अवेल किया। अगर मानो ऐसा है कि मैंने मशीन परचेस किया, उसके ऊपर आईटीसी अवेल नहीं किया है और उसका परमानेंट डिस्पोजल कर दिया, तो वो यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा। मैंने उसके ऊपर आईटीसी लिया हुआ होना जरूरी है। आई मस्ट हैव अवेल्ड आईटीसी ऑन दैट, एंड आउट ऑफ दैट अगर मैं उसका परमानेंट डिस्पोजल या ट्रांसफर करता हूँ फ्यूचर में या बाद में, तो उसके ऊपर मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। इसका मतलब कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी उसको सप्लाई करके ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल कि सपोज मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने सपोज आई एम अ ट्रेडर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स, कुछ फूड आइटम्स का मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं क्या किया, मैंने कुछ गुड्स परचेस किए, एक नया प्रोडक्ट मेरे शॉप में मुझे रखना है, तो मैंने क्या किया, वो नए जो प्रोडक्ट है वो परचेस किया और मेरे कस्टमर को फ्री सैंपल करके दे दिया। ओके, फ्री सैंपल करके डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि नया प्रोडक्ट है जो कस्टमर को दे देता हूँ और उनसे फीडबैक लेने के लिए। सो आई डिस्ट्रीब्यूटेड दोज गुड्स एज फ्री सैंपल टू माई कस्टमर्स। तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगा क्या? देखिए मैंने क्या किया, गुड्स परचेस किया, नया जो आइटम मैं लॉन्च करने वाला हूँ वो मैंने परचेस किया, उसके ऊपर का आईटीसी भी ले लिया, और बाद में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो गुड्स मेरे कस्टमर्स को एज ए सैंपल करके दे दी। तो वो ट्रांजैक्शन ये पहले वाले इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा तो क्यों? नहीं आएगा तो क्यों? यू हैव टू टेल मी द रीजन। नहीं आएगा, व्हाई? बिजनेस के एसेट्स नहीं है। हाँ हाँ, तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल में तो सब आ गया ना। इनपुट एसेट अवेल किया था। देखिए क्या होगा उसका, सो आपके मन में कंफ्यूजन है कि वो मेरा एसेट है कि नहीं, इस बात पे कंफ्यूजन है ना। वो तो पता है कि परमानेंट डिस्पोजल कर दिया है विदाउट कंसिडरेशन, उसके ऊपर आईटीसी भी लिया था। मेन क्वेश्चन इज वेदर इट इज माय बिजनेस एसेट और नॉट। तो व्हाट इज माय बिजनेस एसेट? मशीनरी मेरा बिजनेस एसेट है, फर्नीचर है, ओके उसके बाद कंप्यूटर्स बिजनेस एसेट है मेरा, डेटर्स बिजनेस एसेट है, इन्वेंट्री है। सो बिजनेस एसेट होने के लिए नॉट नेसेसरीली वो फिक्स एसेट का मैटर हो। ओके, मैं कुछ गुड्स परचेज करता तो वो इन्वेंट्री में चले जाते हैं मेरे, सो वो इन्वेंट्री एसेट है कि नहीं मेरा, है ना, राइट? यू अंडरस्टूड? डेटर्स, कैश एंड बैंक, तो करंट एसेट के अंडर आता है सब, वो तो फिक्स एसेट, इसका मतलब सिर्फ फिक्स एसेट नहीं है, राइट? सो अगर ऐसा ये जो ट्रांजेक्शन है, कोई गुड्स में परचेज करता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो वो भी इसमें कवर हो सकता है। ओके, हो सकता है बिकॉज मैंने उसके ऊपर आईटीसी अवेल कर दिया है। ठीक है, सो पहला ट्रांजेक्शन समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट्स इसमें? कोई भी नहीं? ओके, देखिए अगर ये मैं विथ कंसिडरेशन करता हूं तो ये शेड्यूल 1 में आने की जरूरत ही नहीं है मुझे। शेड्यूल 1 कब देखना है? अगर वो विदाउट कंसिडरेशन होगा तभी देखना है। ओके, विथ कंसिडरेशन है तो देखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट second transaction from schedule 1. Second transaction, that is even if this transaction is not for consideration, हमें उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई बोलना है। क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझ लेते हैं। उसमें दो टाइप के ट्रांजैक्शन है, एक है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स, एंड सेकंड वन इज
supply of goods or service between distinct persons as specified in section 25. ओके, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स. अगर कोई दो पर्सन्स एक दूसरे से रिलेटेड है और उन दोनों के बीच में कुछ गुड्स का सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी आप उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे. ओके, सो मान लो देर इज अ फर्म ए एंड फर्म बी. ओके, फर्म ए के ओनर है फादर, फर्म बी के ओनर है उनका सन जो है उसके नाम पे फर्म बी है. सो फादर के फर्म से सन के फर्म में कुछ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर होते हैं. सो फादर एंड सन आर रिलेटेड पर्सन्स. सो उन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो जाएंगे उस ट्रांजैक्शन को आपको भले ही विदाउट कंसिडरेशन हो, आपको सप्लाई उसको ट्रीट करना है. अंडरस्टूड? ये क्यों ऐसा इंक्लूड किया है पता है आपको? ऐसा है कि रिलेटेड पर्सन्स जब कोई होते हैं ना, तो रिलेटेड पर्सन्स में के बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू पे बहुत टाइम पे नहीं किए जाते. ओके, फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं किए जाते. या फिर ऐसा है कि वो हर टाइम पैसे की लेन देन उसमें होती है, ऐसा भी नहीं है. सो मान लो अगर ऐसा है कि ए कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी, बी कंपनी इज अ सब्सिडियरी कंपनी. ओके, सो ए ने कुछ गुड्स परचेज किए और बी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी. सो ए एंड बी आर रिलेटेड, होल्डिंग सब्सिडियरी है इसकी वजह से. सो उसमें ए ऐसा बोल सकता है कि मैंने विदाउट कंसिडरेशन उसको गुड्स दिए हैं, तो कुछ सप्लाई है ही नहीं मेरा, और सप्लाई है नहीं तो मैं जीएसटी नहीं दूंगा गवर्नमेंट को. ऐसा प्लानिंग किया जा सकता है. सो टू अवॉइड दैट दे आर सेइंग कि इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स विदाउट कंसिडरेशन, देन यू हैव टू ट्रीट दैट ट्रांजैक्शन एज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई. अब रिलेटेड पर्सन किसको बोलना है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है. ओके, किसको बोलना है रिलेटेड पर्सन? सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस. ओके, तो दो अलग अलग कंपनीज है, उसका डायरेक्टर्स कॉमन है, तो वो रिलेटेड पर्सन्स हो गए. ओके, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स. सो देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने पार्टनरशिप डीड किया और दे क्रिएटेड अ पार्टनरशिप फर्म. सो दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स ऑफ ईच अदर, सो दे बिकम रिलेटेड पर्सन्स. ओके, और सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. Employer and employee both are treated as related persons to each other. Okay, then a third person controls, owns or holds directly or indirectly 25% or more voting stock or shares of both of them. कोई अगर पर्सन है वो किसी अनदर एंटिटी में 25% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता हो, 25% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता हो, तो वो दो पर्सन्स क्या हो जाते हैं? रिलेटेड पर्सन्स हो जाते हैं. वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर. इसका मतलब ए और बी दो कंपनीज हैं. ओके, ए इज अ होल्डिंग कंपनी, बी इज सब्सिडियरी. सो ए इज कंट्रोलिंग बी, सो ए एंड बी बिकम व्हाट? रिलेटेड पर्सन्स. और अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम. इट मीन्स देखिए ए एंड बी ये दो कंपनीज हैं. ओके, ए कंपनी में ए बी एंड सी, लेट्स से ए बी एंड सी आर थ्री कंपनीज. ए इज अ होल्डिंग कंपनी, बी एंड सी आर सब्सिडियरीज ऑफ ए. सो बी एंड सी दोनों के थर्ड पर्सन कॉमनली कंट्रोल कर रहा है ए. सो ऑल द थ्री बिकम रिलेटेड पर्सन्स. देन सच पर्सन्स टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन. ए और बी मिलके सी को कंट्रोल कर रहे हैं, दो लोग. ओके, टुगेदर दे आर कंट्रोलिंग द थर्ड पर्सन, दे विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन्स. देन सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. फैमिली मेंबर्स अगर वो रहेंगे, ओके, तो फैमिली मेंबर्स को भी रिलेटेड पर्सन ट्रीट किया गया है. और वन ऑफ देम इज ए सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द अदर. ओके, सोल एजेंट मतलब वो एक ही एजेंट है किसी एक का, एक कंपनी है उसका. देयर इज अ सोल सेलिंग एजेंट का कंसेप्ट पता है आपको? सोल सेलिंग एजेंट मतलब क्या? एक पर्टिकुलर एरिया में वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस कंपनी का, उसको कंपटीशन नहीं है. उसको क्या बोलते हैं? सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर. सो अगर ऐसी कुछ रिलेशनशिप दो एंटिटीज में है तो उसको भी रिलेटेड पर्सन ट्रीट किया जाता है. सो ये जो रिलेटेड पर्सन्स है, हाँ हाँ तो ए ही बी और सी को होल्ड करता है. हाँ, तो ए बी का ट्रांजैक्शन अलग हुआ, वो रिलेटेड है. उसमें ए बी और सी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे. बी और सी तो सब्सिडियरी है ना. हाँ, बी एंड सी सब्सिडियरी, लेकिन एक ही कंपनी के सब्सिडियरी है ना. बी एंड सी दोनों को कंट्रोल करने वाला पर्सन एक ही है ना. तो एक थर्ड नहीं हो रहा है ना, बी और सी के लिए वो डायरेक्टली होल्ड करता है, तो वो थर्ड पर्सन कैसे? थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम. बी डायरेक्टली देखा जाए तो
See, B is one company, C is one company, and A, all three are different entities, right? So B और B का भी होल्डिंग कंपनी A है, C का भी होल्डिंग कंपनी A है, तो इसका मतलब क्या? डायरेक्टली होल्ड करता है, मतलब वो डायरेक्ट पर्सन है ऐसा बोलते नहीं नहीं, वो ठीक है, A एंड C डायरेक्टली होल्ड करता है, लेकिन B एंड C भी रिलेटेड हो जाते हैं ना उसमें। हैं। तो बी सी में नहीं करता और सी बी में नहीं करता। नहीं, लेकिन वो दोनों को कंट्रोल करने वाला एक ही है ना। सेम लॉजिक, ठीक है, बिकॉज बी और सी दोनों को एक ही पार्टी कंट्रोल कर रहा है। हाँ, ओके, सो ये जो पर्सन है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड पर्सन्स बोलते हैं। और इनके बीच अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है गुड्स या सर्विस का विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको आपको क्या बोलना है? उसको सप्लाई का ट्रांजैक्शन बोलना है। मतलब रिलेटेड पार्टी के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी उस ट्रांजैक्शन को हमें सप्लाई ट्रीट करना है। सो ये हुआ फर्स्ट पार्ट फ्रॉम दैट सेकंड ट्रांजैक्शन की सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स। अब दूसरा पार्ट क्या है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, ये क्या है? थोड़ा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सेक्शन 25 जो है जीएसटी एक्ट का, सो बेसिकली इट डील्स विथ रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस। ओके, सो व्हाट आर दिस डिस्टिंक्ट पर्सन्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25? ये क्या है मैं बोलता हूँ, एक बार आप समझ लो। ऐसा है कि जीएसटी में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। ओके, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ऐसा कि मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मेरा पुणे में एक प्लांट है, ओके, उसके बाद मेरा अहमदाबाद में एक प्लांट है, मेरा इंदौर में एक प्लांट है और बेंगलोर में एक प्लांट है। जो 4 प्लांट्स मेरे हैं और चारों जगह पे मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ और सेल भी करता हूँ। तो ऐसा है कि जीएसटी के लिए, फॉरगेट अबाउट जीएसटी, लीगल एंटिटी लेवल पे आप अगर बोलोगे तो हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस आर द सेम पर्सन। वो डिफरेंट पर्सन है क्या? नहीं है। सो पुणे हेड ऑफिस एंड 3 ब्रांचेस आर द सेम पर्सन। अगर आप इनकम टैक्स में भी कंपनी में देखोगे तो कंपनी का नेम तो एक ही रहेगा ना चारों जगह पे, तो लीगल एंटिटी एक ही है। ओके, मेरा जो पैन रहता है वो पैन भी एक ही रहेगा, क्योंकि एक पर्सन को एक ही पैन होल्ड करने के ऊपर अलाउड है हमारे यहाँ पे। सो मेरे कंपनी का पैन भी एक ही रहेगा। सो एट लीगल एंटिटी लेवल आई एम द ओनली वन पर्सन। बट जीएसटी लॉ ऐसा बोलता है कि अगर जितने स्टेट में आपके एक्टिविटीज चलते हैं वो उस हर एक स्टेट में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अलग अलग से लेना पड़ता है। सो इन माय केस मेरा पुणे में जो प्लांट है उसके लिए आई विल हैव महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। फॉर अहमदाबाद प्लांट आई विल हैव गुजरात रजिस्ट्रेशन, फॉर इंदौर आई विल हैव एमपी रजिस्ट्रेशन एंड फॉर बेंगलोर आई विल हैव कर्नाटका रजिस्ट्रेशन। सो आई विल हैव 4 डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस फॉर माय सेम एंटिटी। समझ गया? और उसमें कैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन रहता है। ओके, जीएसटी नंबर देखा है आपने कैसे होता है? 27 और आगे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, सो जो 27 के आगे के 10 कैरेक्टर्स है वो मेरा पैन नंबर रहता है। ठीक है, तो उसमें ऐसा है कि इसमें ऐसा होगा कि एक ही पैन पे 4 रजिस्ट्रेशन आ गए मेरे। पैन तो एक ही है, उसमें महाराष्ट्र का एक रजिस्ट्रेशन है, गुजरात का एक रजिस्ट्रेशन है, एमपी का है और कर्नाटका का है। ठीक है, सो ये 4 रजिस्ट्रेशन मेरे हो गए। मान लो अब ऐसा है कि मेरा पुणे में एक प्लांट है और मेरा नागपुर में भी एक प्लांट है। सो मैंने मेरे नागपुर के प्लांट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, ऐसा अलाउड है, यू कैन डू दैट। अब मेरे एक पैन पे 5 रजिस्ट्रेशन हो गए। पुणे, ओके, पुणे एंड नागपुर विल बी महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन बट जीएसटी नंबर सेपरेट रहेंगे। उसके बाद एक गुजरात का रजिस्ट्रेशन, एमपी का और कर्नाटका का। सो सेक्शन 25 ऐसा बोलता है कि एक ही पैन नंबर पे अगर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आपने लिए हुए हैं तो हर एक रजिस्ट्रेशन ये सेपरेट पर्सन है ऐसा ट्रीट किया जाएगा। ओके, सो हियर फॉर income tax purpose I am only one person,
For company law purpose, I am only one person, but for GST purpose, the 5 GST registrations or 5 GST numbers will be treated as different persons or distinct persons. Okay, therefore मेरा महाराष्ट्र GST नंबर ये एक अलग पर्सन है. ओके, गुजरात GST नंबर इज अलग पर्सन, MP रजिस्ट्रेशन इज अलग पर्सन एंड कर्नाटका इज अलग पर्सन. ओके, सो डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 का मतलब एक ही पैन पे अगर एक से ज़्यादा GST रजिस्ट्रेशन आपके हैं तो हर एक GST रजिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट पर्सन ऐसा ट्रीट किया जाता है, या डिस्टिंक्ट पर्सन है ऐसा ट्रीट किया जाता है, लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ GST. बिकॉज GST में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन की कंसेप्ट है इसके लिए. ये समझ में आ गया? ओके, अब ये ट्रांजैक्शन ऐसा बोलता है कि ऐसे सेक्शन 25 में बोले हुए डिस्टिंक्ट पर्सन जो है उनके बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है विदाउट कंसिडरेशन तो उसको भी आपको सप्लाई ट्रीट करना है. समझ रहा है? मतलब अगर ऐसा है कि पुणे के प्लांट से मैं कुछ गुड्स ब्रांच ट्रांसफर करके अहमदाबाद के प्लांट को बेचता हूं तो GST लॉ के हिसाब से क्या हो गया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स दे दिए. अब देखो HO ब्रांच को अगर गुड्स देता है तो ब्रांच कुछ पैसे देता है क्या? उसका नहीं देता है, देगा ही नहीं क्योंकि मैं सेल कर ही नहीं रहा हूँ. लेकिन GST लॉ के लिए अगर ऐसे दो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच कुछ ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो उसको हमें सप्लाई करके ट्रीट करना जरूरी है. तो देयरफॉर HO से ब्रांच में अगर कुछ गुड्स मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उसके उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है नहीं भी है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमको GST पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. ठीक है? यस, सॉरी, ओके. सेक्शन 25 इज सेक्शन विच इज रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन. ओके, सो रजिस्ट्रेशन में GST के ऐसे प्रोविजंस है कि जिस स्टेट से आप आपका टैक्सेबल सप्लाई करते हो उस हर एक स्टेट में आपको सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन है. कि GST में ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया एक ही रजिस्ट्रेशन ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है. GST में कंसेप्ट है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का, राइट? तो अगर मान लो मैं 5 डिफरेंट स्टेट्स से कुछ एक्टिविटीज कर रहा हूं तो हर एक स्टेट में मुझे अलग अलग से GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. ओके, और मतलब मैं एज अ लीगल एंटिटी एक ही हूं. ओके, कंपनी तो एक ही है, ब्रांच और हेड ऑफिस अलग है क्या? नहीं है, एक ही है. तो लीगल एंटिटीज एक, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट भी एक ही बनेगा सबका. लेकिन GST लॉ के लिए अगर मेरे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस है तो हर एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन ये डिफरेंट पर्सन है ऐसा ट्रीट होता है. ओके, देयरफॉर अगर मैं कुछ ब्रांच ट्रांसफर भी मेरे दूसरे स्टेट में अगर कोई मेरा रजिस्ट्रेशन है उस पर उसको कर देता हूँ तो वो ट्रांजैक्शन भी मुझे सप्लाई का ट्रांजैक्शन ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कंसिडरेशन प्रेजेंट है क्या? नहीं है, राइट ना? ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस को पैसे देगा क्या उस गुड्स के? नहीं देगा. फिर भी उस ट्रांजैक्शन को हमें सप्लाई ट्रीट करना है. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, सो म्हणजे हे लक्षात ठेवायचं GST में क्या करना है हमको कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है. सो मान लो अगर मैं 30 स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स में मेरा ऑफिसेस है तो हर एक स्टेट के मुझे 30 GST रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे. देयर इज नो सिंगल, मतलब पूरे इंडिया के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन ऐसा कंसेप्ट नहीं है GST में. ओके, सो अगर मेरे मतलब कैसा कि एक ही एंटिटी के अलग अलग रजिस्ट्रेशन रहेंगे तो ऑल दीज विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट पर्सन्स और उन दोनों के बीच अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो जाता है, ब्रांच ट्रांसफर है ऐसा कुछ, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करके ट्रीट करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? सो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है शेड्यूल 1 का? रिलेटेड पर्सन्स के बीच कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं गुड सर्विस के, या फिर जो सेक्शन 25 के हिसाब से डिस्टिंक्ट पर्सन्स हो रहे हैं उनके बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं विदाउट कंसिडरेशन तो उसको आपको सप्लाई ट्रीट करना है. ठीक है? नाउ देयर इज अ प्रोविजो कि प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन अ वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. ये क्यों है मैं बोलता हूँ. देखो, हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखी है, उसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन्स, राइट? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन्स. सो मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है तो वो इसमें कैच हो जाएगा ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन में, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के बीच हो रहा है. ओके, सो बहुत से कंपनी में ऐसा होता है कि उस एम्प्लॉय का अगर कुछ बर्थडे है या फिर उस एम्प्लॉय का अगर कुछ मतलब कंपनी में उसको 5 साल कंप्लीट हो गए, 10 साल कंप्लीट हो गए तो कंपनी कुछ तो गिफ्ट देती है उनको, या बहुत सारी कंपनीज दिवाली को गिफ्ट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को.
ओके, सो ये प्रोविजो अगर नहीं रहता ना यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी जीएसटी भरना पड़ता कंपनीज को, क्योंकि एम्प्लॉयर इज गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू एम्प्लॉई, दे बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड पर्सन्स, सो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन है, उसके लिए उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता। सो वो जो डिफिकल्टी हो सकती थी वो रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को एक साल में 50,000 रुपीज तक के गिफ्ट देता है, ओके, तो वो इस सेकंड नंबर के ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Okay, provided that gifts not exceeding 50,000 rupees in a value in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or service or both. Okay, मतलब 50,000 मतलब पर एम्प्लॉय 50,000 ना, अगर मेरे 1,000 एम्प्लॉय रहेंगे कंपनी में तो हर एक को 50,000 तक का गिफ्ट्स में दे सकता हूँ। वो ट्रांजैक्शन इस सेकंड वाले जो शेड्यूल 1 का सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें कैच नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समझ गया? Third, supply of goods by a principal to his agent, where the agent undertakes to supply goods on behalf of the principal, or by an agent to his principal, where the agent undertakes to receive the goods on behalf of principal. This is a classic example of consignment agent. पता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करके एक चैप्टर था, उसमें एक बात आप मुझे बोलिए कि मैं जब कोई प्रिंसिपल उसके कंसाइनमेंट एजेंट को गुड्स बेचता है तो वो गुड्स उसका एंट्री क्या पास करते हैं हम? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, मतलब वो P&L को क्रेडिट करते हैं क्या? हम नहीं करते। मेरे भी आप पे एजेंट गुड्स सेल कर रहा है, जब एजेंट गुड्स सेल करेगा तब मैं उसका सेल मेरे बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा, राइट? सो मैं जब मेरे एजेंट को गुड्स बेचता हूं दैट इज नॉट माय सेल। बट जीएसटी लॉ ऐसे बोलता है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को कुछ गुड्स बेचता है या फिर एजेंट प्रिंसिपल को कुछ गुड्स बेचता है तो उसको आप सप्लाई ट्रीट करो और उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो नॉर्मल कोर्स में ये सप्लाई का ट्रांजैक्शन मतलब नहीं बोलते हम उसको, लेकिन जीएसटी ऐसा बोलते कि प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल अगर कोई गुड्स की मूवमेंट होती है तो उसको हमें क्या ट्रीट करना है? सप्लाई ट्रीट करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, मतलब नॉर्मल इसमें वो सेल नहीं बोलेंगे हम उसको, लेकिन जीएसटी के लिए वो ट्रांजैक्शन को सप्लाई करके ट्रीट, क्योंकि ऐसा है कि प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड्स बेचता है तो एजेंट इमीडिएटली पैसे नहीं देता ना उसको, एजेंट गुड्स सेल करेगा उसके बाद वो पैसे आ जाएंगे, मतलब सेल तो प्रिंसिपल के नाम पे ही किया जाएगा आगे जाके, राइट? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल अगर एजेंट को कुछ गुड्स बेचता है इमीडिएटली आप उसको सप्लाई ट्रीट करो। सिमिलरली एजेंट अगर प्रिंसिपल को कुछ गुड्स बेचता है तो उसको भी आप सप्लाई ट्रीट करो और उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? एंड द फोर्थ ट्रांजैक्शन फ्रॉम शेड्यूल 1, import of services by a person from a related person or from any of his other establishments outside India in the course or furtherance of business। देखिए, import of service एक था, सेक्शन 7 में भी था, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। वो क्या था? import of service फॉर कंसिडरेशन था। अब हम शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं तो मतलब ये import of service कैसा है? विदाउट कंसिडरेशन है। तो ये क्या बोल रहे हैं? देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, इसका मतलब कोई पर्सन अगर उसका कोई रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया हो और उससे कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करता है, ओके, यहाँ पे भी गुड्स कवर नहीं होते हैं, सिर्फ सर्विसेज कवर किया है, ओके, उससे अगर कुछ गुड्स इंपोर्ट करता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, then this import of service will be treated as transaction of supply even if it is without consideration। okay, so let's take an example कि what we can say, suppose मेरे ऑफिस का मुझे कुछ रिनोवेशन करना है, ओके, और देर इज अ पर्सन, देर इज माई ब्रदर हु से रिसाइड्स इन न्यूयॉर्क एंड ही इज ए इंटीरियर डिजाइनर। सो मैंने क्या किया, मेरे ऑफिस का जो मुझे रिनोवेशन करना है उसका पूरा डिज़ाइनिंग मैंने मेरे ब्रदर से करके ले लिया फ्रॉम यूएस। सो इट इज़ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट में इंडिया में हूँ, तो मैंने उससे कुछ सर्विस ये कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब देखिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है बाय ए पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, ठीक है, उसके पैसे में नहीं दे रहा हूँ उसका क्योंकि मेरा ही भाई है, और मैंने मेरा ऑफिस रिनोवेट करने के लिए वो सर्विस लिया है। इट मीन्स इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई का ट्रांजैक्शन ट्रीट हो जाएगा अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी। नाउ हम स्लाइटली इस ट्रांजैक्शन को चेंज कर देते हैं कि मैंने क्या किया, मेरा जो न्यूयॉर्क वाला भाई है उससे मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग करके ले लिया, लेकिन मेरे घर का कर लिया, ऑफिस का नहीं किया। ओके, सो क्या होगा उसमें, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन है क्या, है, लेकिन दैट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेरा ऑफिस का रिनोवेशन है तो कोर्स ऑफ बिजनेस में हो जाता, लेकिन मेरे पर्सनल घर का अगर मैं रिनोवेशन का और डिजाइनिंग करके ले रहा हूं तो दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। देयरफॉर इसको हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है वो शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शन में कैच नहीं होगा। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो ही उसको यहाँ पे पकड़ना है, अदरवाइज यहाँ पे वो नहीं आएगा। ये समझ गया? ओके, सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओके, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या, अगर मेरा ही कुछ ब्रांच फॉरेन कंट्री में है, ओके, मान लो आई एम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, सो आई एम सिचुएटेड इन पुणे एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेट्स से अबू धाबी में भी एक ब्रांच है। सो क्या करता है, अबू धाबी का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है वो पुणे के ब्रांच को कुछ सर्विस दे देता है वहां से, समझ गया? तो उसमें क्या हुआ कि एक ही पर्सन का आउटसाइड इंडिया अदर एस्टेब्लिशमेंट है, उससे मैं कुछ सर्विसेज क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं। सो ये भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो रिलेटेड पर्सन्स हो या फिर मेरा ही फॉरेन कंट्री में कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट हो, उससे अगर कुछ सर्विसेज में इंपोर्ट करता हूं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन दिस ट्रांजैक्शंस विल बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शंस ऑफ सप्लाई। समझ गया? चौथा। फोर्थ में इंपॉर्टेंट क्या है, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी है। और उसमें रिलेटेड पर्सन किसको बोलना है, ये जो डेफिनेशन देखा ये कॉमन डेफिनेशन है। जहाँ जहाँ भी रिलेटेड पर्सन ऐसा वर्डिंग जीएसटी में आएगा उसमें सभी जगह पे यही डेफिनेशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, सो शेड्यूल 1 मतलब क्या, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि एक ट्रांजैक्शन को अगर सप्लाई का ट्रांजैक्शन ट्रीट करना है तो आपको क्या उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं बोलना है, ये जनरल रूल है। लेकिन शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शंस आर एक्सेप्शन टू दिस रूल्स। ओके, शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस है कि ये ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन भी हो तो भी आपको उसको क्या बोलना है, सप्लाई करके ट्रीट करना है। ओके, सो 4 टाइप का ट्रांजैक्शन, एक परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC इज अवेल्ड। सेकंड ट्रांजैक्शन इज व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्संस or distinct persons as specified in section 25. Third, supply of goods by principal to agent or agent to principal. And fourth one, importation of services from related persons in the course or furtherance of business. ये 4 ट्रांजैक्शन ऐसे है जो विदाउट कंसिडरेशन भी हो तो भी उसको सप्लाई करके हमको ट्रीट करना है। ओके, अंडरस्टूड? तो इसमें एक सवाल ऐसा आ सकता है कि ये ट्रांजैक्शन तो विदाउट कंसिडरेशन है तो फिर उसका वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, किस वैल्यू पे जीएसटी पे करेंगे? ऐसा होता है ना, अगर कुछ कंसिडरेशन हो तो मुझे पता रहता है ये गुड्स मैंने 10 लाख रुपए में बेचा है या 1 लाख रुपए में बेचा है, इसमें तो कंसिडरेशन है ही नहीं, तो हाउ यू विल डिसाइड कि किस वैल्यू पे जीएसटी पे करना है, राइट? सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, उसके लिए अलग से वैल्यूएशन रूल्स जीएसटी में दिए हुए हैं। अगर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करना है वो अलग से जीएसटी में बताया हुआ है। ठीक है, सो इतने तक क्लियर है सब? ओके, अभी हमारा आधा ही डेफिनेशन रीड करके हुआ है। ठीक है, देखिए सबसेक्शन 1 हमने खत्म किया। ओके, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है आपको, मतलब ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन बताइए ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा कहीं पे। लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई बोलना है कि नहीं बोलना है तो आपको ये सब पता होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट्स किसी भी पॉइंट में देखो। ओके, नाउ अब हम आगे जाते हैं। ये सिर्फ आधा ही डेफिनेशन हमने रीड किया है और थोड़ा बचा है, वो क्या है देखिए। सबसेक्शन 1 कैपिटल A क्या बोलता है, वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. ओके, ये मैं बोलता हूँ क्या, कल हमने एक बार डिस्कस किया था, याद है आपको, कि प्री जीएसटी रिजिम में
देयर वाज अ डबल टैक्सेशन ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है, इसके बारे में कन्फ्यूजन था, इसलिए उसके ऊपर दोनों टैक्सेस अप्लाई पहले वाले ज़माने में होते थे, वो हमने डिस्कस किया, याद है आपको सबको? ओके। सो जीएसटी में ऐसा है कि गुड्स किसको बोलना है या सर्विस किसको बोलना है, इसका कन्फ्यूजन लॉ में रखा ही नहीं है। लॉ में एक शेड्यूल 2 करके शेड्यूल दिया है, उसमें डायरेक्टली बताया है लॉ में कि इसको सर्विस बोलना है, इसको गुड्स बोलना है। सो कन्फ्यूजन दूर हो गए, किसको गुड्स बोलना है किसको सर्विस बोलना है ये क्वेश्चन ही नहीं है अब, क्योंकि लॉ स्पेसिफिकली डिफाइंस, और वो क्या पे डिफाइन करता है, शेड्यूल 2 में डिफाइन करता है। ठीक है, अब शेड्यूल 1 हमने पढ़ा, वैसे एक शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 भी आने वाला है इसी डेफिनेशन में। ओके, सो शेड्यूल 2 का रोल क्या है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है, दैट इज अ रोल ऑफ शेड्यूल 2, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वर्डिंग क्या है देखो, कि वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, दे शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज डिफाइंड इन शेड्यूल 2। इसका मतलब शेड्यूल 2 जो है वो खुद से डिसाइड नहीं करता कि किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलना है कि नहीं बोलना है। वर्डिंग क्या है, सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर कोई सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप आगे जाओ और उसको गुड्स का ट्रांजैक्शन बोलना है कि सर्विस का बोलना है, इतना डिसाइड करने के लिए ही सिर्फ शेड्यूल 2 रेफर करो। इट मीन शेड्यूल 2 और सबसेक्शन 1 कैपिटल ए ऑन हिज ओन डज नॉट डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई और नॉट, और सप्लाई के स्कोप में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये शेड्यूल 2 में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है। शेड्यूल 2 का रोल क्या है, अगर ये सबसेक्शन 1 के जो ये है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर उसको सिर्फ क्लासिफाई करना है कि गुड्स है कि सर्विस है। ओके, सो अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई का होता ही नहीं तो शेड्यूल 2 में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सप्लाई का है तो क्वेश्चन आएगा ना कि गुड्स का बोलना है कि सर्विस का बोलना है। ठीक है, सो सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई का ट्रांजैक्शन ट्रीट हो रहा है तो फिर आप क्या शेड्यूल 2 में क्या देखोगे कि उस ट्रांजैक्शन को ये आपका सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। ठीक है, लिमिटेड रोल है शेड्यूल 2 का। सो अब हम शेड्यूल 2 देखेंगे कि उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन कैसे दिया हुआ है। ओके, शेड्यूल 2 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन। ओके, सो एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब ये सेल का ट्रांजैक्शन है, पता है आपको, सो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है, राइट। देन एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो मतलब गुड्स यूज करने का सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हमने चेयर का एग्जांपल लिया था, मैंने चेयर रेंट पे मैं लेता हूँ, उसमें क्या हुआ, सिर्फ वो चेयर्स 2 दिन के यूज करने के राइट्स मुझे मिले हैं, चेयर का ओनरशिप मुझे मिला क्या, नहीं मिला। सो ऐसे अगर ट्रांजैक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सो इसको हमको क्या बोलना है, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। ठीक है, देन एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। ये क्या ट्रांजैक्शन है पता है, हायर परचेस, करेक्ट। ओके, हायर परचेस में क्या होता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता हूँ और जब मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होती है उसके बाद ही उसका ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफर होता है। ओके, सो अगर ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अगेन इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। सो हायर परचेस के अंडर जो कुछ गुड्स सेल होते हैं उसको भी सेल ऑफ गुड्स ही बोलना है। सो नॉट सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोलना है। ठीक है, ये तीनों ट्रांजैक्शन में आ गए। ओके, नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखो, लैंड का सेल सप्लाई में नहीं आएगा, बट अगर लैंड का लीजिंग करते हो आप, या फिर लैंड के टेनेंसी राइट आप किसी को ट्रांसफर करते हो, या फिर ईजमेंट राइट्स किसी को ट्रांसफर करते हो, ओके, और लैंड ऑक्यूपाई करने के लाइसेंस आप किसी को देते हो, तो ये जो एक्टिविटीज है ना ये तो सप्लाई में आ जाएंगी और उसको आपको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। ठीक है, देन एनी लीज और लेटिंग आउट अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स वोनली और पार्टली। यह है बिल्डिंग, सॉरी, ओके, ईजमेंट। ओके, डिस्कस करते हैं। एनी लीज, लीज तो पता होगा आपको। ओके, टेनेंसी क्या होता है,
टेनेंसी राइट्स मतलब क्या है पता है? no, दैट इज नॉट रेंटल राइट्स पर से। आपको बॉम्बे में पता है चाल सिस्टम रहता है, ओके उसको पागड़ी करके एक वर्डिंग है, कहीं भी सुना होगा आपने। उसमें कैसे रहता है कि जो चाल का जो मेरा जो कमरा होता है या फिर मेरा जो कुछ एरिया होता है, आई एम नॉट ओनर ऑफ दैट, बट उस एरिया के टेनेंसी राइट्स मेरे पास होते हैं और वो टेनेंसी राइट्स में किसी दूसरे पर्सन को बेच सकता हूँ। ओके मतलब मैं लैंड टू से मतलब वो मैं एरिया सेल नहीं कर सकता, लेकिन उस जगह में और उस जगह पे सालों तक रहने की वजह से उस जगह में मेरे कुछ टेनेंसी राइट्स क्रिएट होते हैं, वो राइट्स में किसी को बेच सकता हूँ, इट इज टेनेंसी। ईजमेंट बोले तो लेट्स टेक एग्जांपल, ईजमेंट ओके क्या है, देयर इज अ हाईवे ओके और हाईवे को एडजेसेंट एक मेरे लैंड का एक लेट्स से 10 गुंठे का प्लॉट है, ओके वो हाईवे टच प्लॉट है और बिल्कुल मेरे प्लॉट के पीछे किसी दूसरे आदमी का प्लॉट है, ओके सो आई हैव एक्सेस टू द रोड, लेकिन मेरे पीछे वाला जो है उसको रोड का एक्सेस नहीं है, ओके सो वो पर्सन मेरे पास आता है और मुझे क्या बोलता है कि मेरे पास एक्सेस रोड नहीं है, सो प्लीज अलाउ मी टू यूज सम पार्ट फ्रॉम योर लैंड टू एक्सेस द रोड। और मैं उसको वो अलाउ करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि ये अलाउ करने के लिए आप मुझे कुछ मंथली पेमेंट कर दो। सो ईजमेंट राइट्स, ओके उसको यूज करने के लिए इजी हो इसलिए मैंने कुछ राइट्स उसको ट्रांसफर, इसको ईजमेंट राइट्स। ये बहुत सिंपल बताया मैंने, उसमें बहुत कुछ है और ओके लेकिन ईजमेंट मतलब ऐसा रहता है, ठीक है। लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब लैंड बिल्डिंग का ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। अगेन रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग अगर रहेगा तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलना है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट और प्रोसेस, इसका मतलब एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, गुड्स किसी और पर्सन के हैं, मैं उसके ऊपर सिर्फ कुछ क्या कर रहा हूं, ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहा हूं। ओके लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टेलर। मैं क्या करता हूँ, कपड़ा लेके जाता हूँ टेलर के पास, उसको दे देता हूँ, वो सिर्फ कटिंग करके स्टिचिंग करेगा और वो शर्ट हो या फिर जो कुछ ड्रेस हो वो मुझे वापस कर देगा। सो कपड़ा इज ओन बाय मी एंड ही इज डूइंग सम प्रोसेस ऑन दैट, ओके इसको कमर्शियल इसमें जॉब वर्किंग बोलते हैं। जॉब वर्किंग में किसी और के गुड्स है और उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या फिर प्रोसेस कर रहा हूँ, ओके या फिर ऐसा है कि लेट से सपोज मेरे गाड़ी है, ओके वो गाड़ी मुझे उसका लेट से पेंटिंग करना है, कार का कलरिंग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, गैरेज वाले के पास गाड़ी लेके जाता हूँ, गाड़ी तो मेरी है, वो सिर्फ पेंटिंग की प्रोसेस कर रहा है उसके ऊपर, अंडरस्टूड। सो ऐसे कुछ एक्टिविटीज अगर होते हैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस के नेचर के, तो उसको भी हमको सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। Goods forming part of business assets are transferred to or disposed of by under directions of a person carrying on business so as no longer to form part of the business। इसका मतलब क्या, मेरे बिजनेस एसेट्स अगर मैं कुछ डिस्पोज ऑफ करता हूँ, मेरी मशीनरी है, फर्नीचर है या जो भी मेरा कुछ बिजनेस एसेट्स है, अगर वो एसेट में डिस्पोज ऑफ करता हूँ तो उसको अगेन इट्स सेल ऑफ गुड्स ओनली, सिंपल लॉजिक है। सो उसको हमको सेल ऑफ गुड्स ही बोलना है। देन गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस are put to private use or made available to any person for use for any purpose other than business। ओके सो मेरे बिजनेस पर्पज के लिए कुछ गुड्स मेरे पास है और वो मैं प्राइवेट पर्पज के लिए यूज करता हूँ। ओके सो सपोज आई एम अ ग्रोसरी शॉप ओनर, ओके और मेरे दुकान में मैंने कुछ राइस एंड व्हीट परचेज किया है फॉर सेलिंग टू द कस्टमर्स, और मैं क्या करता हूँ, उसी राइस में से एक राइस की बैग उठा के मेरे घर में ले जाता हूँ यूज करने के लिए। मतलब क्या हुआ, गुड्स परचेज किए थे बिजनेस पर्पज के लिए लेकिन पुट टू प्राइवेट यूज, समझ गया। अगर ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसको हमें सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है, ठीक है, उसको क्या बोलना है, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। समझ गया ट्रांजैक्शन क्या हुआ, बिजनेस पर्पज के गुड्स है लेकिन पुट टू प्राइवेट यूज और नॉन बिजनेस पर्पज, ठीक है। Then goods forming part of any assets of business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है क्या है। सी टैक्सेबल पर्सन किसको बोलते हैं, ये थोड़ा आप समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ।
जीएसटी में ऐसा है कि अगर आपका टर्नओवर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सो महाराष्ट्र में ऐसा है कि अगर मेरा आई एम डीलिंग इन गुड्स और मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं होता तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वंस आई क्रॉस द टर्नओवर ऑफ 40 lakhs देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर मी टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, सो क्या होता है कि मान लो मेरा टर्नओवर 45 lakhs हो गया तो मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया। सो वंस आई ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन आई बिकम टैक्सेबल पर्सन। ओके, सो क्या होता है कि ठीक है मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आई बिकम टैक्सेबल पर्सन। 10 साल तक मैंने बिजनेस किया और 10 साल के बाद एक पॉइंट पे आई बिकम फेड अप विद बिजनेस एंड आई क्लोज डाउन द बिजनेस। अब जब मैं बिजनेस बंद करता हूं तो मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लाइव रखूंगा क्या? नहीं रखूंगा, वो मैंने कैंसिल कर दिया। राइट, मैं इसका मतलब क्या है कि आज मैं टैक्सेबल पर्सन हो रहा हूं और 10 साल के बाद जब मैं बिजनेस बंद करके मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा तो आई विल सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। मतलब मेरा टैक्सेबल पर्सन का स्टेटस जो है वो चला जाएगा। ये समझ में आ गया? अब ये प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर मेरे बिजनेस पर्पज के लिए मैंने कुछ गुड्स बाय किए हैं, ओके, और इफ आई सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर मैं कैंसिल कर देता हूं, ओके, सो एज ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन मेरे पास जो भी गुड्स बचे रहेंगे, स्टॉक में रहेगा ना कुछ तो मेरे पास, वो सब गुड्स मैंने सेल किए हैं, ऐसा आपको ट्रीट करना है। डीमिंग फिक्शन अंडर लॉ, अंडरस्टूड? ओके, व्हेन आई सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब क्या? देखिए फिर से पढ़ते हैं। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन हु सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। ओके, लॉ क्या बोलता है? शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। मतलब मैं टैक्सेबल पर्सन जिस डेट से सीज हो रहा हूं, या मतलब मेरा टैक्सेबल पर्सन का स्टेटस जिस डेट से चला जा रहा है, एज ऑन दैट डेट जो कुछ गुड्स मेरे बिजनेस एसेट के फॉर्म में रहेंगे, सो लॉ अज्यूम्स कि आई हैव सप्लाइड दोज गुड्स इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा और इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है। ओके, तो फिर ये जो डीमिंग फिक्शन है लॉ में, डीम टू बी सप्लाइड बाय, मतलब मैं सप्लाई कर रहा हूं या नहीं रहा हूं ये मतलब नहीं है उसमें, ठीक है, वो मैंने सप्लाई किया है ऐसा लॉ ही अज्यूम कर रहा है और उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ 2 केस में ऐसा डीमिंग फिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन से केस में? एक, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। इसका मतलब देखो, ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड ने क्या किया, उसका रनिंग बिजनेस बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया और बी लिमिटेड इज गोइंग टू कंटिन्यू दैट बिजनेस इन द फ्यूचर। सो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस ए से बी को चला गया, इसका मतलब ए सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, लेकिन बी इज गोइंग टू कंटिन्यू दैट एक्टिविटी। इसका मतलब मेरा टैक्सेबल पर्सन का स्टेटस सीज होता है फिर भी बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है। सो इस केस में ये जो डीमिंग फिक्शन है, डीम टू बी सप्लाइड बाय मी, वो एप्लीकेबल नहीं होता। और बिजनेस इज कैरिड आउट बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब मान लो मिस्टर ए के नाम पे कोई बिजनेस है, ओके, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है और उसका बिजनेस बी जो उसका सन है उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या हो गया? उसका बिजनेस डेथ की वजह से मिस्टर ए विल सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, डेथ हो गया तो, लेकिन वो जो बिजनेस है वो उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। इस केस में भी ये डीमिंग फिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जहाँ पे भी ये डीमिंग फिक्शन एप्लीकेबल हो जाता है उसको हमें क्या बोलना है? सप्लाई ऑफ गुड्स करके बोलना है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल तो ट्रांजैक्शन नहीं आएगा सप्लाई का, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका रेंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शन सप्लाई के डेफिनेशन में आते हैं। सो इफ देर इज एनी एक्टिविटी ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसको सप्लाई ऑफ क्या बोलना है? सर्विस बोलना है। अंडरस्टूड? उसको क्या बोलना है? सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करना है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। ओके, देखिए ऐसा है, हमने थोड़ी देर पहले ऐसे डिस्कस किया कि बिल्डिंग के सेल पे तो जीएसटी नहीं है। व्हाई? बिकॉज बिल्डिंग इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी करके अगर ट्रांजैक्शन ये छोड़ देगा गवर्नमेंट तो बहुत सारा रेवेन्यू चला जाएगा, राइट? तो गवर्नमेंट को वो ट्रांजैक्शन टैक्स करना है,
कैसे करना है, तो इसमें ऐसा है, ये थोड़ा आप इसका लॉजिक समझिए फिर हम प्रोविजन पढ़ते हैं। देखो बिल्डिंग अगर कोई कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कब बोलना है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। उस बिल्डिंग को इमूवेबल प्रॉपर्टी कब बोलेंगे आप। नॉर्मल ट्रांजैक्शन में कैसे होता है, देखो अगर आपको कोई फ्लैट मान लो परचेज करना है, ओके, अगर वो रेडी पोजीशन फ्लैट रहेगा तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और आप कुछ फ्लैट परचेज करते हो या फिर कोई कमर्शियल स्पेस परचेज करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ता है बिल्डर को, राइट। बिल्डर एक साथ ही सब पैसे नहीं देने पड़ते अंडर कंस्ट्रक्शन इसके लिए। तो क्या होता है, बिल्डर क्या बोलेगा, जब मेरा प्लिंथ का काम हो जाएगा तो आप 10% पेमेंट करो, ओके, जब मेरा आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन होके पूरा होगा तब थोड़ा पेमेंट करो, जब मैं स्लैब डालूंगा तब थोड़ा पेमेंट करो, ओके, जब मेरा वॉल का प्लास्टरिंग हो जाएगा तब थोड़ा पेमेंट करो, कलरिंग होने के बाद थोड़ा पेमेंट करो, और फाइनली जब आप पोजीशन लोगे उस टाइम पे थोड़ा पेमेंट करो, ओके, ऐसा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाता है। तो जीएसटी लॉ क्या बोलता है, देखो हाँ, वो क्या बोलता है कि बिल्डिंग सेल है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं वो बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टेटस अचीव करने से पहले ही बाय करता हूं, समझ गया, बिल्डिंग का क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टेटस अचीव करने से पहले ही मैं अगर वो बाय करता हूं तो वो बोलते हैं कि बिल्डर आपको बिल्डिंग नहीं बेच रहा है, वो आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई कर देती है, ओके। सो मेन क्वेश्चन इज को इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टेटस कब मिलेगा। सो देखिए नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई भी बिल्डर कोई स्कीम कर रहा होता है तो उसको उसका एक प्लान बनाना पड़ता है, ओके। हमारे यहाँ पे एक टाउन प्लानिंग अथॉरिटी करके एक अथॉरिटी रहता है, उसको प्लान सबमिट करना पड़ता है, ओके, वो अथॉरिटी वो प्लान अप्रूव करती है, उसके बाद आप पूरा कंस्ट्रक्शन करते हो। जब मेरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो वो टाउन प्लानिंग वाले आके उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन करने के बाद वो एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और कुछ कुछ जगह पे उसको ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ओके। सो लॉ ऐसे बोलता है कि जब वो अथॉरिटी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगा तब हम बोलेंगे कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे पहले हम इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। सो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले अगर आप कुछ मतलब फ्लैट या फिर कोई कमर्शियल स्पेस किसी को बेचते हो तो दिस इज नॉट अ सेल ऑफ बिल्डिंग बट दिस इज द सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, ऐसा फिक्शन लॉ में क्रिएट किया गया और वो ट्रांजैक्शन जीएसटी के पर्व्यू में लाया गया। अंडरस्टूड, ओके। अब हम ये रीड करते क्या, देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly except where entire consideration has been received after issuance of completion certificate, okay। वो क्या बोलते हैं, अगर आपको उस बिल्डिंग का पूरा कंसिडरेशन आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल है। अगर थोड़ा सा पार्ट ऑफ कंसिडरेशन भी बिफोर कंप्लीशन आपको मिल जाएगा तो दिस इज सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, और बहुत सारे केस में ऐसा ही होता है, ओके। हर जगह पे क्या आप रेडी पोजीशन फ्लैट नहीं परचेस कर सकते ना, नॉर्मली जब ऐसा होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रहती है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर हमारे हिसाब से चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, और उसमें ऐसा होता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा पेमेंट करता हूँ बिल्डर को, सो बिफोर कंप्लीशन ही मैं पेमेंट कर रहा हूँ बिल्डर को। सो इसलिए ये कंडीशन मीट होता है क्या, एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होता है। अंडरस्टूड, देयरफॉर उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस। अगर मैं कोई रिसेल का फ्लैट बेच रहा हूँ तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्लैट मैंने ऑलरेडी परचेस किया है, जो कंप्लीटेड फ्लैट है, मैंने यूज किया और मैंने बाद में सेल कर दिया, सो आई एम सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन अगर कोई कंसिडरेशन बिल्डर को मिलता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ, और अदर दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड नॉट द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को आपको क्या बोलना है, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। सो कन्फ्यूजन था ना पहले इसमें
कि बिल्डिंग एक्टिविटी, बिल्डर की एक्टिविटी को गुड्स बोलना है कि सर्विस बोलना है, कन्फ्यूजन यहाँ से चला गया क्योंकि लॉ ने बोला कि उसको आप सर्विस ही ट्रीट करो। ओके अब इसमें है कि जब हम कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करते हैं, द कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशन, अल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट और रीमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, तो वो भी उसमें इंक्लूड होता है। और इसमें ऐसा है कि ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है ना, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू करना जरूरी है। ओके तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब क्या, अगर आप पुणे की हम बात करेंगे तो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जरूरत लीगली नहीं होती, क्योंकि ये लोकल बॉडी का रूल होता है उसको, मतलब ये पुणे कॉर्पोरेशन के अंडर जो एरिया आएगा उसको वो रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। सपोज आप किसी गांव में जाते हो और कोई कंस्ट्रक्शन करते हो एंड इफ दैट एरिया इज कवर्ड बाय ग्राम पंचायत जुरिस्डिक्शन, तो कुछ कुछ जगह पे ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन ही नहीं करना पड़ता, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। ओके सो उस जगह पे क्या बोल रहे हैं, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है किसी एरिया में, तो वो सर्टिफिकेट आप रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से ले सकते हो, या फिर चार्टर्ड इंजीनियर से ले सकते हो, या फिर लाइसेंस सर्वेयर से ले सकते हो। जहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है तो आपको वो लीगल अथॉरिटी से ही कंप्लीशन लेना पड़ेगा। जहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने का, वहाँ पे ये तीन लोग हैं, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट और चार्टर्ड इंजीनियर और लाइसेंस सर्वेयर। ओके उनसे किसी से भी आप ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन्स वगैरह ऐसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको बोलते हैं, ओके उसका अगर आप परमानेंट टेम्पररी ट्रांसफर करते हो या फिर उसका यूज किसी को परमिट करते हो, जैसे मैंने बोला ना ऑथर क्या करता है, उसका कॉपीराइट अलाउ करता है पब्लिशर को बुक परचेज करने के लिए। या फिर अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है तो व्हाट ही विल डू, उसने जो म्यूजिक कंपोज किया है ही विल अलाउ द योर फिल्म प्रोड्यूसर टू यूज हिज लिरिक्स और यूज हिज म्यूजिक इन दैट फिल्म, so he is allowing use of his copyright to that film producer। okay so ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है सो उसको भी हमको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। अगेन डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। अगर कल हमने फिर से बोला था, कन्फ्यूजन था सॉफ्टवेयर को गुड्स बोलना है कि सर्विस बोलना है, अगेन लॉ ने डिफाइन किया कि उसको आपको सर्विस ही बोलना है। ओके सो अगेन कन्फ्यूजन दूर हो गया। नेक्स्ट, एग्रीइंग टू डू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। इसका मतलब देखो, अगर आप किसी को कोई थिंग नहीं करने के लिए एग्री करते हो, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट, या फिर आप किसी ने किया हुआ कुछ एक्ट है वो आप टॉलरेट कर रहे हो, या फिर आप किसी एक्ट करने को एग्री कर रहे हो, एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, ये सबको जीएसटी में सप्लाई ट्रीट किया है। लेट्स टेक एग्जांपल, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट पता है आपको क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट? लेट्स टेक एग्जांपल। ओके सपोज एक स्कूल है और उस स्कूल के सामने मेरा एक स्टेशनरी का शॉप है और वो स्कूल होने की वजह से मुझे बहुत बिजनेस वहाँ पे मिलता है। अगर ऐसा होता है कि मेरे बगल वाले बिल्डिंग में ही कोई दूसरा एक पर्सन आता है एंड ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट ही स्टेशनरी शॉप, सो क्या होगा, मुझे कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा और मेरा बिजनेस कम हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर्सन को जाके मिलता हूँ, उसको बोलता है आई विल पे यू 5 लाख रुपीज़, पर आप यहाँ पे शॉप मत डाल। नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट, सो वी एग्री विथ ईच अदर, वी विल नॉट कॉम्पिट विथ ईच अदर। ओके ऐसा कोई थिंग है, उसका मतलब वो पर्सन क्या कर रहा है, वहाँ शॉप ना डालने का एग्री कर रहा है मुझसे। सो ये जीएसटी में सप्लाई होता है और जो 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे उसके ऊपर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। ओके या फिर टॉलरेटिंग एन एक्ट, सपोज ऐसा है कि लेट्स से आई एम टाटा मोटर्स, ओके और मैंने क्या किया, मेरे वेंडर्स को कुछ ऑर्डर प्लेस किया है कि लेट्स से आज 17 फेब है, तो 17 फेब को मुझे इतना क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट आपने डिलीवरी देना है। ओके सो मेरे वेंडर ने क्या किया, 17 का डेट मिस कर दिया डिलीवरी का, उसने डिलीवरी दे दिया 20th को। ओके सो मैंने क्या किया, उसने लेट डिलीवरी दिया है मुझे, ये एक्ट टॉलरेट करने के लिए मैंने उसको लेट डिलीवरी चार्जेस डेबिट किए।
So I am tolerating his late delivery. So this is a supply under GST. ओके या फिर नोटिस पे रिकवरी पता है आपको क्या होता है? नोटिस पे क्या होता है पता है? नोटिस पीरियड हर एक कंपनी में रहता है. व्हाट इज दैट? इसका मतलब आपको अगर वो कंपनी छोड़ना है तो कंपनी का रूल होता है कि कंपनी छोड़ने से एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा. सो वंस आई गिव इंटीमेशन, वो 3 महीना मुझे सर्व करना है कंपनी में, उसके बाद वो कंपनी में छोड़ सकता हूँ. अगर ऐसा है कि किसी दूसरे कंपनी का जॉब ऑफर मेरे पास है ऑलरेडी, हाँ, और मैंने क्या किया, वो कंपनी मुझे बोल रही है आप 3 महीने तक वेट करने के लिए टाइम नहीं है, आप इमीडिएटली ज्वाइन करो. सो मैं क्या करता हूँ, पुराने वाली कंपनी में नोटिस दे देता हूँ और 3 महीने जो नोटिस पीरियड मुझे सर्व करना है वो सर्व करने से पहले ही वो कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में ज्वाइन करता हूँ. तो पुराने वाली कंपनी क्या करती है, मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जब होगा उस कंपनी में, तो वो कंपनी क्या करेगी कि आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है, इसलिए वो कुछ अमाउंट मेरे को जो अमाउंट उनसे मिलना है उसमें से कुछ अमाउंट वो डिडक्ट कर देंगे फॉर नॉट सर्विंग द नोटिस पीरियड. सो इसको बोलते हैं नोटिस पे रिकवरी. सो मेरी एक्ट टॉलरेट करने के लिए दैट कंपनी इज डूइंग दैट. सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर ट्रीटेड एज सप्लाई, और इसको हमें क्या बोलना है, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स फॉर एनी पर्पज. ओके, गुड्स, राइट टू यूज द गुड्स, मशीनरी रेंट पे दे दिया, कंप्यूटर रेंट पे दे दिया, ऐसा कुछ, मतलब वो यूज़ करने का राइट मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उसको भी हमको सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलना है. अगर कोई मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी करता हूँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोले तो देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलिंग, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, उसको वर्क्स मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस रेटिंग टीम अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलमेंट एटसेट्रा जो जो कुछ एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ उस सबको मिलके हमको क्या बोलना है, कलेक्टिवली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बोलना है. So, ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी कैसे है देखो कि गुड्स और सर्विस एक साथ सप्लाई हो रहे हैं, राइट ना. सो उसको उन्होंने बोला कि आप सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करो. ठीक है. नेक्स्ट, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक. ये क्या है, रेस्टोरेंट सर्विस है. ओके, लीगल वर्डिंग बहुत अलग अलग से उन्होंने यूज़ किया है. सो ये जो एक्टिविटी है, ये रेस्टोरेंट सर्विस की एक्टिविटी है, उसको भी उन्होंने बोला कि आप सप्लाई ऑफ सर्विस ही ट्रीट करो. ठीक है, उसको क्या बोला, सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करो. सो अगेन कन्फ्यूजन था ना पहले, इसमें रेस्टोरेंट को गुड्स बोलना है कि सर्विस बोलना है, अगेन ये कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो गया. सो आप उसको सप्लाई, मतलब रेस्टोरेंट को आप क्या ट्रीट करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस ही ट्रीट करेंगे. ओके, देन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू द मेंबर्स देयर ऑफ फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी एसोसिएशन है, वो उनके मेंबर्स के लिए कुछ गुड्स सप्लाई कर रही है. लेट्स टेक एग्जांपल, देयर इज अ न्यू सोसाइटी. ओके, एक नया बिल्डिंग किसी बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट किया है, नई सोसाइटी बनी है और उसमें अभी लोग रहने को आए हैं. मान लो 50 लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं. इसमें अगर ऐसा होता है कि हर एक को अपने घर में एसी फिट करना है, तो अगर मैं इंडिविजुअल जाके कुछ एसी बाय करता हूँ तो मुझे डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलता. तो सोसाइटी ने क्या किया, 50 के 50 लोगों का इकट्ठा ऑर्डर प्लेस कर दिया एसी का. ओके, सो हर एक मेंबर से उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया. ओके, और वो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करके उन्होंने 50 एसी परचेस किया और हर एक मेंबर को दे दिया. सो उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, सोसाइटी ने गुड्स परचेस किए हैं और मेंबर्स को सेल किया है, राइट. सो ऐसे कुछ एक्टिविटी होता है तो उसको सप्लाई ऑफ क्या बोलना है, गुड्स करके ट्रीट करना है. सो दिस इज शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 मतलब क्या, शेड्यूल 2 इज ओनली क्लासिफिकेशन. पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है, इसका सिर्फ वो क्या है, क्लासिफिकेशन है. शेड्यूल 2 खुद से किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलना है कि नहीं ये डिसाइड नहीं करता है. ओके, इसमें क्या हुआ है, सिर्फ अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई का होता है तो उसको गुड्स बोलना है कि सर्विस बोलना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन पर्पज के लिए हमें क्या करना है, ये शेड्यूल 2 रेफर करना है. सो अभी आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखो सप्लाई का स्कोप क्या क्या होता है वो डिस्कस किया. ओके, उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, दैट वी डिस्कस. देन वी डिस्कस इन शेड्यूल 1
उसमें विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन हो तो उसको कौन कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलना है वो हमने डिस्कस किया, और शेड्यूल 2 क्लासिफिकेशन गुड्स कौन किसको बोलना है, सर्विस किसको बोलना है, इतना हमने आज डिस्कस किया। तो आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। ओके, इसका जो शेड्यूल 3 और जो बाकी के डेफिनेशन के पार्ट है वो जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उस टाइम पे वी विल डिस्कस। ओके, सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।